یہ ناولٹ شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے میں آپ کو سناتی ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ چھٹیاں لے لوں، کچھ عرصہ گاؤں رہ کر آتے ہیں۔ کیا؟ وہ پوری کی پوری گھوم گئی۔ گاؤں میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس قدر ڈسٹ اور پھر گندگی، اف، مجھے تو ابھی سے سوچ کر متلی ہونے لگی ہے۔ میں نے جو کہا ہے نیرا بلال وہی کرو، وہ سخت لہجے میں کہتے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئے۔ ان کا یہ روپ نیرا کے لیے انجانا تھا، پھر جیسے اس کی خود سری اوت کر آئی، بس نہیں جانا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا۔ مارکیٹ میں ایک دم بھگدڑ سی مچ گئی تھی، اور ایسے میں جب وہ حواس باختہ سے اپنے ڈرائیور کو تلاش کر رہی تھی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک سمت کو بھاگنا شروع کر دیا تھا، اور وہ جیسے گھسٹتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ عجیب پاگل لڑکی ہیں آپ، قدرے محفوظ مقام پر پہنچ کر اس نامعلوم اجنبی نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی سے پیار نہیں ہے آپ کو؟ کیوں ابھی سے مرنا چاہتی ہیں؟ بازو پر ابھی تک اس کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ کون ہیں؟ ہمارا بازو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ چھوڑیں۔ اس نے ناگواری سے اپنا بازو چھڑایا۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے مجھے تھوڑا اجالا دو۔ تو چلیے پھر اس ناولٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی ہنسی کو ایک دم بریک لگ گئے۔ کان کے اوپر اوڑسا بال پین نکال کر کھولا، بند کیا، پھر اسی سے سر کھجانے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر ایک دم چھائی سنجیدگی گروپ کو ہلا گئی۔ اس نے آنکھ سے سامنے اشارہ کیا۔ بلیک مارگلا سے ٹیک لگائے ارمغان حجازی اسے مسلسل گھولنے میں مصروف تھے۔ اوہ! سب کے منہ سے بڑا معنی خیز اوہ نکلا۔ پھر سب یکدم کھلکھلا کر ہنستی۔ ان حضرت کو کوئی خاص پرابلم ہے۔ زنینا نے اپنی گول گول آنکھیں مٹکائیں۔ نیرا بلال نے کاندھے اچکائے، بال پین دوبارہ کان کے اوپر اوڑسا۔ اوکے گرلز، ہم تو چلے۔ تم ذرا اس ارمغان حجازی کو سمجھاؤ، یہ چھچوری حرکتیں ہمیں سخت ناپسند ہیں۔ اس نے شولڈر بیگ کو دوسرے کاندھے پر منتقل کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا کہاں رہی ہو؟ ارما کو فکر ہوئی۔ کہیں نہیں، بس ذرا لائبریری تک، ڈیڈ کے لیے کچھ کتابیں چاہیے۔ نیرا، آج مجھے ڈراپ کر دینا، گاڑی خراب ہے، اور دھکے کھانے کی ہمت ہرگز نہیں۔ زونینا نے کوئی چوتھی مرتبہ تاکید کی۔ نیرا نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور لائبریری کی سمت بڑھ گئی۔ نیرا کی جاتی زونینا تنتناتی ہوئی ارمغان حجازی کے سر پر جا کھڑی ہوئی، جو کہ اب اداس سی شکل بنائے گاڑی کا لاک کھولنے لگے تھے۔ ایکسکیوز می سر۔ خلاف توقع اس نے بڑی عزت کا مظاہرہ کیا تھا۔ جی۔ وہ چونک کر مڑے تھے، استجابی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سر، ایک 16-17 سالہ ٹین ایجر کو تو یہ حرکتیں سوٹ کرتی ہیں۔ آپ جیسے لوگ اگر اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ بلا تمہید شروع ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو ارمغان حجازی شرمندہ ہوئے، اگلے ہی پل وہ نارمل ہو گئے۔ دیکھیے زنینا کمال، پوری طرح اس کی طرح متوجہ ہو گئے۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، یہ واقعی انتہائی اوچھی حرکت ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بالکل غیر اختیاری فعل ہے۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہتا، جیسے ہپناٹائز ہو جاتا ہوں، اور پلیز آپ مجھے منع مت کیجیے گا، پلیز۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے زنینا حیرت سے انہیں دیکھتی رہی، حتیٰ کہ ارما نے آ کر اسے زوردار دھپ ماری۔ سر جا چکے ہیں؟ ہاں۔ وہ چونکی، یوں ہی گم سم سی ارما کے ساتھ چل پڑی، رخ لائبریری کی سمت تھا۔ آخر پاپا جانی، الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں؟ بالوں میں تیزی سے برش چلاتے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے ہی سے پاپا کو دیکھا۔ بلال احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ضرورت ہے نا مائی چائلڈ، اور اب تو فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مجھے الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ ارے میں نے ہار مان لی تو چچا کریم کا خاندان سمجھے گا میں کمزور پڑ گیا ہوں، سو پوزیشن بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے دھیرج سے سمجھایا۔ پاپا جانی، اس نے لپسٹک کی ہلکی سی تہ ہونٹوں پر جمائی، آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور شولڈر بیگ اٹھا کر دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ پھر جیسے کچھ یاد آنے پر پلٹ آئی۔ بلال احمد اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس کے یوں پلٹ آنے پر سر اٹھایا۔ آپ ارمغان حجازی کو جانتے ہیں پاپا؟ ہاں، وہ جو لیکچرار ہیں؟ بے وقت کے سوال نے انہیں چونکایا تھا۔ پاپا، اصل میں وہ شخص سرے سے لیکچرار دکھتا ہی نہیں، یقین کریں پاپا، انتہائی عجیب شخص ہے۔ آئی تھنک پاپا ادھر پاکستان میں لوگ عہدے اپنے مقام کی پہچان بھول گئے ہیں۔
एम आई राइट? इसने तायद चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आज भी जिस कदर इज़्ज़त एहतराम हमारे यहाँ है और कहीं नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं और इसकी यही वजह होती है कि उनकी तरबियत में कुछ खामी रह जाती है, कोई कमी, कोई एहसास कमतरी। फिर बाज़ औक़ात ये सब ना भी हो तो भी बस लाशऊरी तौर या कभी कभार शऊरी तौर पर इंसान क्या है कौन जाने। वो जैसे उलझते उलझते चौंके, सर झटक कर अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गए। नीरा ने कुछ अजीब सी नज़रों से उन्हें देखा। कभी कभी पापा इसे बड़े पुरस्कार से लगते थे, अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटीज़ से, लेकिन क्यों, ये वो समझ ना पाई थी। इसे जुनैना कमाल को पिक करके इरमा की तरफ पहुंचना था। फ्रेंड्स गैदरिंग थी, आज लास्ट वीकेंड था। तैयब हमदानी भी आ रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही एहतमाम से तैयार हुई थी। जुनैना ने इसे देखते ही तारीफ़ी अंदाज में होंठ सकोड़े। खुश नसीब है तैयब हमदानी जिसके लिए इस कदर एहतमाम होता है। वो हंसी थी, वो बोली कुछ नहीं, बस मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। अच्छा, शादी कब कर रहे हो तुम लोग? जुनैना के पास गिने चुने टॉपिक होते हैं गुफ्तगू के लिए और इनमें से शादी का मौजू पसंदीदा था। आई डोंट नो, लेकिन मेरा ख्याल है जोनी, पापा इस बात को कभी पसंद नहीं करेंगे कि मैं तैयब हमदानी से शादी करूं। इसने लापरवाही से शाने उचकाए थे। तो क्या तुम सरेंडर कर दोगी? जुनैना ने हैरत से देखा। शायद। देखो जोनी डियर, तैयब हमदानी मुझे अच्छा लगता है, मैं इससे मिलती हूँ, लेकिन मुझे शायद इससे मोहब्बत नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं यकीनन उससे मिलने को बेचैन रहा करती, दिन गिना करती, या शायद फिर मेरे जहन में इन सब बातों के लिए लफ्ज़ छिछोरपन ही आता है। लेकिन मुझे ये भी पता है अगर तैयब हमदानी से मेरी शादी ना हुई तो कोई ऐसी ख़ास बात ना होगी, शायद मुझे दुख भी ना हो। इसके बावजूद वो एकदम खिलखिला कर हंसती। मैं इससे मिलने के लिए ख़ास एहतमाम करती हूँ। इसकी पसंद के कपड़े पहनकर इसके साथ चाइनीज़ जाना भी अच्छा लगता है। जब वो गिटार पर तुम सा हसीं कोई नहीं गाता है तो मुझे इसके एहसासात अपने दिल पर महसूस होते हैं। ये जो मोहब्बत है मैं कर ही नहीं सकती, और यार जब तक मोहब्बत नहीं होगी शादी भी नहीं होगी। कम ऑन, दुनिया में इससे अच्छे और भी करंट अफेयर्स हैं जिन पर डिस्कशन हो सकती है, जैसे अरमगान हिजाज़ी। बस अचानक ही इसके मुंह से निकला था और इसकी वजह शायद ये थी कि दाखिली दरवाजे से अंदर आकर इरमा के पापा से गर्मजोशी से मुसाफिहा कर रहा था और टेरेस पर झुकी नीरा बिलाल अचानक नज़र पड़ जाने पर इसका नाम ले गई थी। क्या? इरमा ने हैरत से इसको देखा, जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। हाँ ना, वो देखो। उसने उंगली से इशारा किया। जुनैना और इरमा तो आधी आधी रेलिंग पर लटक गई। ये यहाँ कैसे? जुनैना बुड़बुड़ाई थी। तुमने तो कोई गड़बड़ नहीं की कोई फिल्मी सीन अरेंज करने के लिए? इरमा ने इसे घोरा था। व्हाट नॉनसेंस। नीरा ने बाल झटके। इस किस्म के छिछोरे लोगों से मुझे सख्त नफरत है, जिनका काम ही बस लड़कियों को देखना होता है। हाँ, और ये तैयब कहाँ रह गया और शहला लोग किधर हैं? इसने मौजूद गुफ्तगू तब्दील करने की गर्ज से इधर उधर नज़र दौड़ाई। नीचे ही हैं, चलो चलते हैं। इरमा ने सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। सुनो, नीचे इससे तो सामना नहीं होगा ना? नीरा ने जैसे तसल्ली चाहिए। नहीं तो क्यों? इरमा पलटी। मैं बस यूं ही। हस्बे आदत इसने कंधे उचकाए। फिर तैयब हमदानी की कुर्बत में वो करीबन अरमगान हिजाज़ी को भूल ही गई थी, और शायद अगले चंद दिन वो भूल ही रहती कि यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थी। डैडी ने अचानक अरमगान हिजाज़ी का जिक्र छेड़ दिया, और वो भी नाश्ते की टेबल पर। वो जो तंदही से स्लाइस पर मार्मलेड लगा रही थी, सर उठाकर हैरत से बिलाल अहमद को देखने लगी। आपने जवाब नहीं दिया। इसे खामोश पाकर उन्होंने दोबारा पूछा। इसने हाथ में पकड़ा स्लाइस प्लेट में रख दिया और कदरे तवक्कुफ से बोली, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं? मेरी पर्सनल राय अच्छी नहीं है उनके बारे में। इसने साफ गोई का मुजाहिरा किया। बिलाल अहमद मुस्कुराए। उसने तुम्हें प्रपोज़ किया है? बहुत धीरे से कहा। व्हाट? वो उछल ही पड़ी। क्या कह रहे हैं डैड आप? अरमगान हिजाज़ी? ओ नो डैड, बिल्कुल नहीं। कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। सोचने में कोई हर्ज नहीं है बेटा। अरमगान हिजाज़ी अच्छा लड़का है, वेल एजुकेटेड है, फैमिली भी अच्छी है। मेरे ख़्याल में तुम इसके साथ खुश रहोगी, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। वो बात ख़त्म करके जूस पीने लगे। वो कुछ ना समझने की कैफियत में घिरी अपने कमरे तक आई और आते ही जुनैना को फ़ोन खड़का दिया। व्हाट? वो भी उछली थी।
सर अरमगान ने प्रपोज कर डाला तुम्हें? ओह फंटास्टिक। वो बहुत पुरजोश हो रही थी। क्या फंटास्टिक? वो बिगड़ी। अरे इतना ज़बरदस्त बंदा, और तुम क्यों इतना बन रही हो? सच बताओ, दिल में लड्डू नहीं फूट रहे? ओह नीरा डार्लिंग, कैसी अच्छी खबर दी तुमने। पता है पिछले 4 दिन से मैं कितनी टेंस थी कि मामा इस बार जो इंग्लैंड ट्रिप से वापसी पर फिरोज़े का नेकलेस लाई थी, वो कब पहनूं। और बंद करो फ़ोन, अभी मुझे बाज़ार जाना है मैचिंग सूट के लिए। बाय द वे, फिरोज़े के साथ अगर मैरून कलर की साड़ी पहन लूँ तो कैसा रहे? मरो तुम, इस वक्त सारे बाज़ार बंद हैं। इसने जलकर फ़ोन बंद कर दिया। जुनैना से हौसला अफजा जवाब ना पाकर इसने इरमा से बात करने का इरादा तर्क कर दिया था, और अब टहल टहल कर सोचने लगी थी आखिर डैडी को क्या जवाब दे। और वो तैयब हमदानी? इरमा को फ़ौरन तैयब का ख्याल आया था। आई डोंट नो। इसने बेबसी से कंधे उचकाए। मैंने सारी रात गौर किया, तैयब हमदानी के बारे में सोचा, अरमगान हिजाज़ी के बारे में सोचा। नतीजा ये निकला कि दोनों का पलड़ा एक जैसे ही रहा। मुझे तैयब हमदानी से मोहब्बत है ना अरमगान हिजाज़ी से। और डैडी जिसके साथ चाहे मेरी शादी कर दें, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली इरमा, मर्द शादी के बाद शौहर ही होता है, कोई महबूब वगैरह नहीं। इसलिए शादी चाहे अरेंज हो या लव, कुछ अरसे बाद एक सी हो जाती है। वही गिले शिकवे, वही नाराज़गियाँ। क्या फ़र्क पड़ता है अगर तैयब हमदानी हो या अरमगान हिजाज़ी या कोई भी ABC। वो फ़ैसला करके बहुत मुतमईन थी। लेकिन नीरा डियर, तैयब हमदानी सीरियस है तुम्हारे लिए। इरमा को बस तैयब हमदानी की फ़िक्र खाई जा रही थी। अच्छा, मैं ख़ुद बात करूँगी इससे, उसने कुछ सोच कर कहा। तुम सेल्फिश हो रही हो नीरा बिलाल, इरमा ने फिर कहा तो वो उठकर चली आई। अब क्या सारी फ़िक्रें पालने की ज़िम्मेदारी इसकी थी? अगर तैयब हमदानी इसके बारे में और तरह से सोचता था तो वो क्या कर सकती थी? इसने तैयब हमदानी से बात करने का इरादा तर्क कर दिया था, लेकिन उसका फ़ोन आ गया। असल में ही तुम जैसी हाई सोसाइटी की लड़कियों की हॉबी है नीरा बिलाल। वो सख्त तैश में था। तुम खुद जब चाहो किसी से मोहब्बत कर सकती हो, जब चाहे मोहब्बत से मुनकिर हो सकती हो। तुम्हारे लिए सिर्फ जस्ट फॉर एंजॉयमेंट होती है। किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है नीरा बिलाल, पूरी ज़िंदगी। और हाँ, तुम ये मत समझना मुझे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत से दिलचस्पी थी। खटाक से फ़ोन बंद हो गया। नीरा ने कुछ लम्हे इसकी बातों पर गौर किया, फिर भूल गई। इसने फ़ैसले का हक़ डैडी को दे दिया था, और वो यकीनन इसके बारे में गलत फ़ैसला नहीं कर सकते थे। तो क्या तुम फ़ाइनल नहीं करोगी? जुनैना ने सुनहरी वेडिंग कार्ड को उलट पुलट करते हुए पूछा। आई डोंट नो, वो खिलखिलाकर हंस दी। अगर अरमगान साहब फरमाएंगे तो फ़ाइनल भी हो जाएगा। बाद में अगर नहीं, फिर मेरी प्लानिंग तो है ही। हम लोग शादी के बाद वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। डैडी ने सारे अरेंजमेंट्स की हुई हैं। हाउ नाइस। जुनैना, मुझे तो ख़बर ही ना थी अरमगान मुझे इतना चाहते हैं। बिलीव मी, इन चंद दिनों में मैं बिल्कुल ही बदल गई हूँ। मेरे महसूसात, ख़यालात एकदम बदल गए। शायद मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ। जुनैना ने बगौर इसे देखा। इसकी सियाह आँखें जगमगा रही थीं। शायद नहीं, यकीनन। जुनैना ने इसे साथ लिपटा लिया। तुम्हारे चेहरे और आँखों का रंग भी तो बदल गया है। ऐसी खुशी तो तैयब हमदानी से मिलते हुए भी नहीं होती थी तुम्हारे चेहरे पर, जैसे अरमगान हिजाज़ी के महज तसव्वुर से। वैसे सच बताऊं, अरमगान हिजाज़ी भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सच है, सच्ची मोहब्बत हमेशा कामयाब होती है। अरमगान हिजाज़ी मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहे और बिलाखिर तुम्हें पा लिया, वरना बेचारे कैसे पागल हुए फिर रहे थे अपने रुतबे, अपने ओहदे का ख्याल किए बगैर। जुनैना बीते दिन दोहरा रही थी और नीरा के होंठों पर मुस्कुराहट थी, बड़ी जानदार, दिलफरेब मुस्कुराहट। जुनैना और इरमा ने सारी क्लास फेलोज़ को इकट्ठा कर लिया था। शाम समय जब ढोलक रख कर बैठती तो फिर बस भौचाल ही आ जाता। बुआ चाय, बुआ कोल्ड ड्रिंक, बुआ सैंडविचेस, प्लीज़ बुआ पानी का गिलास, और बख्तियार बुआ बेचारी घन चक्कर बनी सबकी फरमाइशें पूरी करती। साथ साथ नसीहतों का पिटारा खुला रहता। गला फाड़ने के बाद इस तरह एकदम ठंडा पानी मत पियो, आवाज़ बंद हो जाएगी। इतना चिल्लाओ मत, 2 हाथ परे के मुर्दे जाग जाएंगे और कहीं बाराती बनकर यहाँ दावत उड़ा रहे हैं। बुआ डराएं तो मत, एक साथ चिल्लाती। तौबा है, कानों को हाथ लगाती चल पड़ती, पर चैन उन्हें भी कहा था। थोड़ी देर बाद फिर आन मौजूद होती। सुन नीरा,
थोड़ी सी रिवायती दुल्हनों वाली शर्म ही अपना लो। अब के रुख लड़कियों के साथ गाती बजाती नीरा की तरफ हुआ। बटवाए बुआ, गाना बजाना मेरा हक है, वो मुस्कुराहट दबाए कहती। ए लो, किसी लड़की ने अपनी शादी पर ख़ुद से भी गाना बजाना किया, लोग क्या कहेंगे? इतना ही शौक़ है शादी का? गुस्सा अरूज पर जा पहुंचता। हाँ तो है ना, क्यों आपको नहीं था? नीरा ने छेड़ा तो बुआ शर्मा गई। ए हटो। उन्होंने अपना पानदान खड़ाक से बंद किया और ढोलक अपनी तरफ खिसका ली। तुमने सारे काम तो सीख लिए, बस ये ढोल पीटना ना आया। फिर जो उन्होंने ढोलक बजाई तो सभी कायल हो गई थी और फिर बाकी के सारे दिन ढोलक बजाना बुआ के फ़राइज़ में शामिल कर दिया गया। नीरा, नीरा, अरमगान साहब इज़ ऑन द लाइन। सौम्या ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देते हुए इत्तलाती। वो जल्दी से पानी पर मुँह के छींटे मारती बाहर निकल आई। लगता है एक दिन का भी सब्र नहीं, सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराती। फिर इसके फ़ोन लेते ही सौम्या शौक़ नज़रों से देखती बाहर चली गई। हेलो, इसने अपनी असली शौक़ी का मुजाहरा किया था। हेलो, उधर से आती गंभीर आवाज़ में जाने क्या था कि बोर्ड से लड़की एकदम खामोश हो गई। कैसी हो? ठीक। काफ़ी देर तवक्कुफ़ के बाद वो बोली थी। क्या हुआ? अरमगान ने महसूस किया था। कुछ नहीं। आप? फिर इसकी हंसी निकल गई। बेसाख्ता इसके मुंह से आप निकला था। अब क्या हुआ? आवाज़ की गंभीरता बरकरार थी। कुछ नहीं। वो हंसी रोक कर बोली। अब कि वो ज़ोर से हंसे थे। क्या हुआ? नीरा हैरान हुई। कुछ नहीं। इसी के लहजे में कहकर फ़ोन बंद कर दिया क्या? इसने फ़ोन को घोरा, ज़ोर से हंस पड़ी। वो अल्लाह, रूही क्या बिल्कुल ही भर डालोगी मुझे? इसने दुहाई थी। चुप बेशर्म, इसने घुरका। मेहंदी लग रही है तुम्हें, और देखो किस कदर खूबसूरत डिज़ाइन है, ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए। अभी तक मैंने ऐसा स्टाइल किसी और के नहीं बनाया। तुम हो के नखरे किए जा रही हो। बट यार, ये सारे हाथ बाजू पैर, उफ, तुम मुझे क्या बना रही हो? गुज़श्ता 4 घंटे से वो इसी तरह बैठी थी और रूही ने मेहंदी लगाने का सारा फ़न जैसे यहीं आजमाना था। इस कदर बारीकी से मेहंदी का डिज़ाइन बना रही थी कि मुसलसल 4 घंटों के बाद भी एक बाजू रह गया था। अच्छा सुनो रूही, मैं यहाँ लेट जाती हूँ, तुम बनाती रहो प्लीज़। मैं बहुत थक गई हूँ, शाम का इतना लंबा फंक्शन अटेंड किया है, अभी कल का सारा दिन। प्लीज़। वो वाकई थकन से बेहाल हो रही थी। अच्छा लेट जाओ। रूही को इस पर तरस आ गया। वो शुक्र करती लेट गया और अभी गालबन इसने आँख ही बंद की थी। यूँ लगा जैसे पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। सब के सब ढोलक उठाई चली आ रही थी। ओ मेरे खुदा, इसने पलकें ज़ोर से मींच लीं। ये वक्त नहीं है सोने का। सब बैक आवाज़ चिल्लाई। फॉर गॉड सेक, चुड़ैलो, मुझे कुछ देर सो लेने दो प्लीज़। इसने बेबसी से उन्हें देखा। हरगिज़ नहीं, ढोलक प्रोग्राम यहीं होगा। और आज तो बुआ जी का लुड्डी प्रोग्राम है। जुनैना ने गोया बड़ी अहम खबर सुनाई थी। वो अपने आप को ढीला छोड़कर लेट गई। बुआ जी चाय और मिठाई लिए आबराजमान हुई। फिर वो शोर मचा था कि सारी नींद उड़न छू हो गई थी। सुबह 5 बजे के करीब वो उठी थी। तभी 2 घंटों के लिए इसने सो लिया था। इसके बाद इसे ब्यूटी पार्लर जाना था और हसीन लगने के लिए इसका फ्रेश होना ज़रूरी था। सो सब ने इसे कम से कम इस 2 घंटों में कुछ नहीं कहा था। मैंने जब पहली बार आपको देखा नीरा, मेरे दिल ने कहा यही है। बिलीव मी नीरा बिलाल, मेरे दिल ने पहली बार आपको देखकर धड़कना सीखा। आई नो आपको ये बातें बड़ी चीप सी मालूम होंगी, लेकिन हकीकत यही है। मैं अपना रुतबा, अपना मुकाम सब कुछ भुला बैठा था, और अगर नीरा बिलाल तुम इनकार कर देती तो सचमुच मैं कुछ न कुछ कर बैठता। हैरत हो रही है ना ये सब सुनकर? असल में 30 साल का होने के बावजूद मेरा दिल तुम्हारे मामले में किसी नौउम्र लड़के से कम नहीं। इसका हाथ थाम कर अरमगान हिजाज़ी ने मोहर जब्त की। वो कुसमुसा कर रह गई। असल में ज़िंदगी बिना मोहब्बत के कुछ नहीं। जैसे ये खूबसूरत हाथ, जैसे ये मद भरी आँखें, जैसे ये सभी चेहरा। तुम कितनी खूबसूरत हो नीरा, मेरे दिल से पूछो। लहजे में गंभीरता उतर आई थी। इसने एकदम अपना हाथ खींच लिया। क्या हुआ? अरमगान जैसे किसी तिलस्म में थे। कुछ नहीं। इसने सर हिलाया। कुछ नहीं। अरमगान ने ज़ेरे लब दोहराया और फिर दोनों हंस पड़े थे। अगले ही दिन वो हनीमून पर चले गए थे। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के बाद उन्हें आगे का सफ़र करना था, जबकि नीरा को तो सारी दुनिया यहीं सिमटी लग रही थी। यहीं रहते हैं ना?
इसने ब्लू स्कार्फ गर्दन के गिर्द लपेटते हुए हथेलियां आपस में रगड़ी। देखते ही देखते बादल रूई के गालों की तरह उड़ने लगे थे। हाउ क्यूट, वो खुशी से चिल्लाई। हथेली फैलाकर रूई के गालों को कैद करने की कोशिश करने लगी। इसकी नाक सुर्ख हो रही थी। अरमगान हिजाजी ने इसे बड़ी दिलचस्पी से देखा था। मान देखे ना, खुशी से भरपूर लहजा था। अरमगान हिजाजी की जहनी रो जाने कहाँ से पलटी। उन्होंने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। चलो वापस चलें, इससे पहले कि तूफ़ान शिद्दत अख्तियार करे। अंदाज मायने खेजी लिए हुए था। इसकी पलकें झुक गईं। बस तुम लड़कियां फ़ौरन। वो हंस पड़े और अब के इसने भी साथ दिया था। जब वो अपना हनीमून पीरियड मुकम्मल करके वापस लौटे तो सबने यही कहा था कि वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन हो गई है, और इसने बेसाख्ता अरमगान की तरफ देखा था। उस रोज़ बमुश्किल अरमगान से इजाज़त लेकर पापा की तरफ आई थी। वो इसे देखकर बहुत खुश हुए थे। मसरूफ़ियात उनकी अब भी बेबहा थीं। इलेक्शन करीब होने की वजह से वो कुछ दबाव में भी थे, और नीरा ने महसूस किया था पहले की तरह इसे तवज्जो नहीं दे पा रहे। इसने दबी ज़ुबान से शिकवा भी कर डाला था। तुम खुश हो? उन्होंने एकदम ही सवाल किया। जी जी, खिलखिलाकर हंसती। डैड, आपको फ़ील नहीं हो रहा क्या? इसने खुद देखा था, खुशी उसके अंग अंग से फूटती थी। हाँ हाँ, वो जैसे चौंके थे। आर यू ऑल राइट पापा? मुतफक्कर हुई थी। यस यस, डोंट वरी। वो इसका सर थपकते उठ खड़े हुए। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब है माई सन। कभी कभी वो सब हो जाता है जो हम तवक्को नहीं कर रहे होते, और ऐसे में हौसला नहीं खोना चाहिए। डैडी? कई सानिया उनकी मुस्तरब आँखों में देखती रह गई थी। पता है नीरा, मेरी एक फुप्पो हैं। तुम मुझसे मिली नहीं हो, लेकिन जब मिलोगी तो बहुत खुश होगी। अरमगान ने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे अपनी तरफ किया। वो पीछे हटी। हाँ, तो कब मिलवा रहे हैं अपनी फुप्पो से? इसने अपने नाखून को देखते हुए कहा। जब तुम कहो। असल में वो यहाँ नहीं होती, गांव में होती हैं। सोच रहा हूँ छुट्टियाँ ले लूँ, कुछ अर्सा वहाँ रह कर आते हैं। अरमगान नीचे बैठकर शूज़ उतारने लगे। क्या? पूरी की पूरी घूमी थी। क्या मुज़ायका है? इसकी हैरत पर वो चंदा नज़रअंदाज कर किया। मान, गांव में मैं कैसे रह सकती हूँ? इस कदर डस्ट और फिर गंदगी। ओफ, मुझे तो अभी से सोचकर मतली होने लगी है। अरमगान हिजाजी ज़रा सा मुस्कुरा के बोले, कुछ नहीं, अलबत्ता अगले दिन कॉलेज से वापसी पर इसे छुट्टियां मिल जाने का मसला सुना डाला, और साथ ही पैकिंग का भी कह डाला। मगर अरमगान प्लीज़, मैं किसी गांव में 1 घंटा नहीं गुजार सकती। तुम 1 हफ़्ता के लिए कह रहे हो? वो तब सी गई थी। मैंने जो कहा है नीरा बिलाल, वही करो, अंडरस्टैंड? वो सख्त लहजे में कहते कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गए। उनका ये रूप नीरा के लिए अनजाना था। वो कई सानिया तो गौर ही करती रह गई, फिर जैसे इसकी खुदसरी ऊत कर आई। बस नहीं जाना, इसने मुसम्मम इरादा कर लिया। अरमगान ज़बरदस्ती तो नहीं ले जा सकते ना? इसने आराम से कंबल के अंदर मुंह दे लिया। पर यह अरमगान आज बोले कैसे हैं? इसके जहन में जैसे तकरार सी होने लगी। क्यों? आखिर ऐसे क्यों वो बोले? इसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। इससे कबल कि वो धुआंधार रोना शुरू करती एक झटके से कंबल खींच लिया गया। अरमगान? हैरत सदमे से वो गुंग रह गई। सुबह 7 बजे हमें निकलना है, ज़रूरी पैकिंग कर लो। हुक्म देकर वो दूसरी तरफ आकर लेट गए और सो गए। नीरा बिलाल को यही महसूस हुआ था। मिट्टी जैसे इसके हलक में तह दर तह बैठ गई थी, और मिट्टी बैठने की इब्तदा तो शायद रात में ही हो गई थी। तभी तो चाहने के बावजूद वो पापा को फ़ोन तक न कर सकी थी। इसे बिला वजह ही अरमगान से खौफ महसूस होने लगा था। तमाम रास्ता खामोशी से कटा था। मतलूबा ट्रेन न मिल सकने की वजह से उन्हें बस पर आना पड़ा था, और बस भी शायद हज़रत नूह के ज़माने की थी, चलती कम, शोर ज़्यादा कर रही थी। और नीरा का तो ज़िंदगी का पहला बदतरीन तजर्बा था। इसने तो कभी ख्वाब में भी तसव्वुर न किया था कभी वो लोकल बसों में धक्के खाएगी। और अरमगान हिजाजी यकायक इस कदर जालिम क्यों हो गए थे? इसने भीगती पलकें उठाकर साथ बैठे अरमगान को देखा, जो बहुत इत्मीनान से मूंगफली छील छील कर खा रहे थे, यूँ जैसे वो किसी ऐसी आला मॉडल की कार में बैठे हों। मुझे क्या आ रही है? इसने दुहाई दी थी। अच्छा, वो हंसती है। फिर मूंगफली का खाली शॉपर इसकी तरफ बढ़ा दिया। यूज़ इट। वट? दबी दबी आवाज़ में चीखी थी। निढाल होकर टूटी हुई सीट की पुश्त से टेक लगा ली थी, और अगला सफ़र तो और भी कठिन और तवील था।
मिट्टी से अटा वो कच्चा रास्ता जिस पर दूर दूर तक धूल उड़ रही थी, इसे पैदल चलना था। इसने सवालिया नज़रों से अरमगान की सेम देखा। इस वक्त तांगा मिलना तो मुश्किल है, इसलिए पैदल ही चलना पड़ेगा। और इसे लगा जैसे वो सारी की सारी धूल एकदम ही इस पर पड़ गई थी। इसने पक्का इरादा कर लिया था कि पहुंचती अरमगान हिजाजी से अपना कसूर ज़रूर पूछेगी। ऊंची हवेली के बुर्ज दूर से ही नज़र आ रहे थे। कुछ मुतमईन हुई कि फासला कम हुआ। इतना भी कम नहीं था। पहुंचते पहुंचते कम से कम 1.5 घंटा लगा और हवेली के दाखिली दरवाजे पर कदम रखते ही तेवरा कर गिर पड़ी थी। होश आया तो अपने ऊपर एक बेइंतहा खूबसूरत खातून को झुके हुए पाया। एक पल को तो भूल ही गई कि वो कहाँ है। तुम ठीक हो? घंटियाँ बजाती आवाज़ पूछ रही थी। इसने पलकें खोली और बंद की, जैसे सब कुछ याद आ गया, साथ ही सफ़र की तकलीफ़ भी। नाजुक मिजाज होना भी एक अज़ाब ही है। अरमगान हिजाजी की आवाज़ आई थी। फुप्पो, आजकल की लड़कियां बेकार नहीं हैं क्या? ज़रा सी मुशक्क़त बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती। 2 कदम चल लेंगी, बेहोश हो जाएंगी। आसाइशों ने इन्हें किस कदर बेकार कर दिया है। इसकी आंखें पानियों से भरने लगीं। इस कदर संग दिल भी हो सकता है ये शख्स। वो जो कहता था, जानू तुम्हारे पाँव इतने नाजुक है, चलती हो तो लगता है बस टूट ही जाएंगे, और वो इसे इस तरह पैदल चला कर लाया था। क्या एक लम्हा को भी इसको ख्याल ना आया था? बच्ची को भूख लगी होगी, मैंने खाना लगवा दिया है, आ जाओ। फूफो ने बिना किसी तासुर के जैसे फीट किया हुआ जुमला बोला था। आ जाओ नीरा। अरमगान भी साथ ही उठकर चल दिए थे। अगरचे इसको उठने को जीना चाह रहा था, फिर भी शदीद भूख का एहसास इसे उठा ले गया था। खाना काफ़ी पुरतकल्लुफ़ था। इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल पर वो 3 लोग ही थे। मुलाजमाएं अलबत्ता आ जा रही थी, ये उसका अंदाज़ा था। तुम खा नहीं रही? इसे यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे देखकर अरमगान ने कहा, और वो प्लेट उठाकर इसमें खाना निकालने लगी थी। अरमगान मुसलसल बोलते रहे थे, जबकि फूफो खामोशी से सुन रही थी। इसने जल्द ही खाने से हाथ खींच लिया था। अब जब वो लेटी तो इस पुरस्कार हवेली के बारे में सोच रही थी जो अरमगान ने इसे दिखाई थी। इतनी बड़ी हवेली में तन्हा फूफो का रहना इसे बेहद अजीब लगा था। बेशक मुलाजिम थे, फिर भी यूं कैसे रहा जा सकता था? शायद फूफो के इस कदर खामोश होने की वजह भी यही थी। सुनो नीरा। अरमगान की आवाज़ इसे सोचों के भंवर से बाहर खींच लाई थी। इसने सर उठाकर अरमगान की सिम देखा। तुम्हारे ख्याल में मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? हाँ। इसे जैसे तवक्को नहीं थी वो इस सवाल करेगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ नीरा बिलाल कि अगर तुम दुनिया की एक एक तख्लीक को 100 बार भी ज़रब दो तब भी वो फिक्र नहीं आएगा। इसे याद आए जब वो हनीमून पीरियड के दौरान एफल टावर के नीचे बैठी थी। अरमगान ने इसके कंधों पर हाथ रखते हुए बेहद रसान से कहा था, और नीरा बहुत बुलंदियों पर पहुंच गई थी। वो बोली कुछ नहीं, खाली नज़रों से अरमगान को तकने लगी। मैं इतनी मोहब्बत किसी और से करने लगूं, यानी तुम्हारी मोहब्बत में फ़र्क ना आए और मैं किसी और से भी वैसे ही मोहब्बत करने लगूं तो? नहीं अरमगान। वो एक झटके से उठ बैठी। मैं तो मर जाऊंगी मान। सचमुच तुम्हारे साथ किसी और को तो मैं सोच भी नहीं सकती। को जाके देखूं? देखो नीरा, ये जो मोहब्बत है ना, इस पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। किसी भी लम्हा किसी और से भी हो सकती है। बंदे को तैयार रहना चाहिए हालात की तब्दीली के लिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। वो जाने क्या कहना चाह रहे थे। आप बदल रहे हैं मान। आपकी मोहब्बत का ज़ाविया बदल रहा है, या दूसरी मोहब्बत का फिगर मेरी मोहब्बत से भी बढ़ गया? क्या हुआ है बताएं? वो सिसक उठी। अरमगान हिजाजी मुस्कुरा दिए। नीरा बिलाल, अगर तुम्हें पता चले मैंने तुमसे शादी इंतकामन की है तो? उनका लहजा बेहद ठहरा हुआ था। नीरा की ज़ात के परखचे उड़ के। क्या? उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ नीरा बिलाल। उन्होंने दोनों बाजू सर के पीछे फैलाते जैसे इंकशाफ किया था। ये शादी इंतकामन हुई है। मुझे तुम्हारे पापा बिलाल अहमद से इंतकाम लेना था, अपनी फुप्पो का इंतकाम। उनके लहजे में अजीब सी सख्ती दर आई थी। मेरे पापा का आपकी फुप्पो से क्या ताल्लुक़? वो संभल कर गोया हुई थी। मेरी फुप्पो तुम्हारे पापा की बीवी थी। उन्होंने बहुत ठहर ठहर कर इंकशाफ किया था, और अब की बार क्या? नीरा के हलक में ही कहीं अटक गया था।
और वो पापा से मिलने को बेचैन थी, जबकि वो मिल के ही ना दे रहे थे। अरमगान इसे अगले ही दिन वापस ले आए थे। वो तब से अब तक पापा से मिलने की कोशिश कर रही थी। पापा को तो टाइम ही ना मिलता था। एक बार फिर इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ थे। आए दिन इन्हें कहीं ना कहीं जलसा करना होता था। ऐसे में उनके पास नीरा से हेलो हाय करने का भी वक्त नहीं था। अरमगान हिजाज़ी की मोहब्बत की सिमत बदल गई थी, या शायद मरकज़ तो वही थी, बस वक्ती तौर पर सिमत तब्दील हुई थी। उसने कितने मान से कहा था, अरमगान मेरे पापा ऐसे नहीं हैं, और अगर तुम्हारा कहा हर्फ बहर्फ सच साबित हुआ तो मैं खुशी से तुम्हारी दी हुई हर इंतकामी सज़ा कबूल कर लूँगी। और अरमगान मुस्कुरा दिए थे। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी नीरा बिलाल। नीरा बिलाल के दिल ने इसके कहे की गवाही दी थी। इसे तो यकीन था कि अरमगान का कहा सब झूठ है। वो खामखा पापा को इल्ज़ाम दे रहे हैं, वरना इसके नाइस से पापा भला इस तरह कर सकते थे। मुझे कुछ दिनों के लिए पापा के घर जाना है। अरमगान प्लीज़ रोकना मत। अगर तुम्हारा कहा सच साबित हो गया तो यकीन मानो मैं खुद चली आऊँगी, और अगर गलत हो गया फिर तुम कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। ये मेरा तुमसे वादा है। और अरमगान हिजाज़ी उसे रोक ना सके थे। और फिर उसी रात 2 बजे जब पापा घर में दाखिल हुए तो वो सीढ़ियों में जा खड़ी हुई थी। ओह नीरा बेबी, आप कब आई? ठीक तो हैं? वो इस वक्त बेहद थके हुए लग रहे थे। पापा, आपके पास चंद घंटे होंगे मेरे लिए? उसका लहजा गैर मामूली था। वो चौंके बिना नहीं रह सके। खैरियत तो है? उन्होंने कनपटी को उंगली से दबाते हुए फिक्रमंदी से उसे देखा, जो बेहद मुस्तरिब दिखाई दे रही थी। अभी तो नहीं, लेकिन पापा सिर्फ चंद घंटे। इसने अपनी बात दोहराई। ओके बेबी, रिलैक्स्ड, सुबह बात होगी नाश्ते पर, डोंट वरी। वो जैसे समझ गए थे कि मामला गंभीर है, इसलिए मज़ीद कुछ कहे बिना इसे कंधे से थाम कर इसके कमरे में छोड़ गए थे। और वो तमाम रात जैसे इसने कांटों पर काटी थी। सुबह नाश्ते पर हस्बे वादा पापा इसके मुंतज़िर थे। जब वो नीचे आई तो वो स्लाइस पर जैम लगा रहे थे। आओ बेटा। उन्होंने मसरूफ़ रहकर इसे बैठने का इशारा किया। पहले नाश्ता करो। इसे गुफ्तगू के लिए पर तोलते देखकर उन्होंने पेशबंदी की। वो खामोशी से नाश्ता करने लगी। बमुश्किल एक स्लाइस हलक से उतार कर इसने चाय के 2 घूंट भरे और छूटते ही आगाज़ कर दिया। पापा, ज़ोहरा जमाल कौन थी? इसे पूरा यकीन था कि पापा इनकार कर देंगे कि वो ऐसी किसी खातून को नहीं जानते जिसका नाम ज़ोहरा जमाल है। वो शायद चौंके थे, लेकिन जाहिर ना किया था। ज़ोहरा जमाल का अरमगान से क्या रिश्ता है, ये बताओ। उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया था और इसके अंदर जैसे धुआं उठने लगा था। तो गोया पापा और ज़ोहरा जमाल। वो निचला लब दांतों तले दबाए यकटक पापा को देख रही थी, जिनकी फराक पेशानी पर तफक्कुर नुमाया था। ज़ोहरा जमाल जिंदा है? वो जैसे खुद से बुड़बुड़ाए थे, फिर कब सरकाकर उठ खड़े हुए थे। तुम्हें ज़ोहरा जमाल के बारे में जो भी पता चला हो सच ही होगा, लेकिन नीरा डियर, इसका क्लाइमैक्स वो हरगिज़ नहीं जो तुम्हें बताया गया है। वो खामोशी से उठी और अरमगान हिजाज़ी का नंबर डायल करने लगी, ये कहने के लिए कि वो आए और इसे ले जाए। और ये इसे अब पता चला था, बेपनाह मोहब्बत देकर अगर वापस ले ली जाए तो मन कैसे एकदम खाली सा हो जाता है। आंखें कैसे आंसुओं से भर जाती हैं और दुनिया कैसे बेरंग हो जाती है। अरमगान ने इससे कुछ ना कहा था, लेकिन वो मोहब्बत भरी बातें जो इसमें ज़िंदगी भर दिया करती थी, अब वो कहीं नहीं थी। वो दोनों एक घर में एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रहने लगे थे। वो इसे सज़ा की हकदार थी। अक्सर माँ बाप का किया औलाद को भुगतना पड़ता है, और यही सोच इसे इस छत तले रहने पर मजबूर कर रही थी। कुछ अजाले इसके ज़िम्मा थे, इसे करना थे। वो चुप थी, खामोशी से वो अजाला कर रही थी जो किसी तौर अजाला था ही नहीं। और यूँ भी होता है बिलाल अहमद, जब आप मुतमईन होकर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करके सोचने लगते हैं कि अब सब ठीक है, फिर कोई भूला हुआ गुनाह सामने आ जाता है पूरी शक्ल के साथ, और तब एहसास होता है कि ये तो शायद सब गुनाहों से भारी था। और ज़ोहरा जमाल जिसे वो भूल चुके थे अब कैसे एकदम आ खड़ी हुई थी। हाँ बिलाल अहमद, मेरा हिसाब भी तुम पे निकलता है। ऊंची ऊंची आवाज़ें उनके इर्द गिर्द चकराने लगी थीं। वो ज़ोहरा जमाल जो किस्सा पारीना थी, वो ज़ोहरा जमाल जिसकी अनदेखी कब्र पर वो कई बार फातिहा पढ़ चुके थे। लिपस्टिक का रंग चेक करते इर्द गिर्द से बेनियाज ज़ोहरा जमाल ने पल की पल पलट कर देखा था, जैसे एकदम सब कुछ धुआं हो गया था। मार्केट में भगदड़ मच गई थी, और ऐसे में जब वह हवास बाख्ता से अपने ड्राइवर को तलाश कर रही थी,
किसी ने इसका हाथ पकड़कर एक सिमत को भागना शुरू कर दिया था और वो जैसे घिसटती हुई इसके पीछे जा रही थी। अजीब पागल लड़की आप, कदरे महफूज मकाम पर पहुंचकर इस नामालूम अजनबी ने इसे डांटना शुरू कर दिया था। ज़िंदगी से प्यार नहीं है आपको? क्यों अभी से मरना चाह रही हैं? बाजू पर अभी तक इसकी गिरफ्त मजबूत थी। नहीं तो हम कब? हम तो लिपस्टिक परचेज़ कर रहे थे। रशीद पता नहीं किधर गया, उसको देख रहे थे कि अचानक ये सब। और आप कौन हैं? हमारा बाजू क्यों पकड़ रखा है? छोड़ें। इसने नागवारी से अपना बाजू छुड़ाया। एक धीमी सी मुस्कुराहट बिलाल अहमद के लबों को छू गई। इसी बाजू को पकड़कर मोहतरमा आपको वहाँ से निकाल कर लाया हूँ। मजबूरी थी, उठा नहीं सकता था। ज़ोहरा जमाल की पेशानी खिफ़त से अर्क आलूद हो गई। बड़ी फजूल गुफ्तगू करते हैं आप। बहरहाल हमें रशीद ढूंढ कर लाते हैं, घर जाना है हमें। इसका अंदाज़ तहक्कुम भरा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। हाय, ये रशीद साहब प्राइम मिनिस्टर हैं कि फ़ौरन मिल जाएंगे। मैं तो उनको जानता तक नहीं। क्या पता धमाके में उनके परखचे भी उड़ गए हों। बाय द वे, रशीद है कौन? हमारा ड्राइवर है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? और ये आप क्या कह रहे हैं? अब हम घर कैसे जाएंगे? हम तो चोरी से आए थे। मम्मा को पता चल गया तो हमारे टुकड़े करके फेंकवा देंगी। वो बुरी तरह परेशान हो गई। अच्छा, आप रहती किधर हैं? बिलाल अहमद ने इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए पूछा। अपने घर में, यानी जमाल विला में। आज हमारे प्यारे भतीजे अरनी का बर्थडे है। हम सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, इसलिए मम्मा से चोरी गिफ्ट ख़रीदने आ गए। मामा हमें घर से बाहर नहीं निकलने देती। वो समझती हैं कि हम अभी तक बच्चे हैं। हालांकि हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन वो मानती ही नहीं। आप अभी तक खड़े हैं, जाएं ना, रशीद को ढूंढिए, देर हो रही है। बातें करते करते फिर रशीद का ख्याल आ ही गया। अगर आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ाऊँ? रशीद तो अब नहीं मिलने का। ऐन मुमकिन है धमाके में वो इधर उधर हो गया, तो बजाय इसका इंतज़ार करने के आप घर पहुँचें। रशीद खुद ब खुद घर पहुँच जाएगा। बात तो वो सही कह रहा था। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद मान गई। बिलाल अहमद इसे अपनी गाड़ी तक ले आया और जिस वक्त वो इसके लिए फ्रंट डोर खोल रहा था, उसी वक्त वो रशीद रशीद चिल्लाते हुए एक सिम को भाग उठी। वो गाड़ी से टेक लगाए इसे जाता देखता रहा, फिर मुस्कुराता और गाड़ी में आ बैठा। वह ऐसे इत्तफाकात को मानता नहीं था और ना ही ऐसी फिल्मी सिचुएशन की इसे उम्मीद हुआ करती थी। लेकिन शाम को जब वो एहतशाम की मैयत में BCA लाउंज में दाखिल हो रहा था, तो सामने ही वो एक नन्हे बच्चे से खेलती नज़र आ गई। वो इस फिल्मी किस्म के इत्तफाक पर अभी हैरान हो रहा था कि एहतशाम ने इसका कंधा हिलाया। यार सहाफ़ी, अगर तुम आ ही गए हो तो यहीं हाजिर रहो। खामखा की ख़बरें मत ढूंढो। ख़बरें नहीं, अरमगान को देख रहा हूँ, साथ में इसकी मामा है शायद। इसने जानबूझकर गलत बयानी से काम लिया था। अरे नहीं, ज़ोहरा है छोटी बहन, बड़ी प्यारी। आओ तुम्हें मिलवाऊँ। एहतशाम उसे लेकर इस सिमत बढ़ गया और इसे देखते इसकी आंखों में हैरत उभर आई थी। अरे आप यहाँ? फ़ौरन आगे बढ़ी थी। क्या तुम जानते हो एक दूसरे को? एहतशाम उलझा। जी भाया, आज सुबह जब मार्केट में धमाका हुआ था तो इन्होंने ही मुझे बचाया था। अरमगान से खेलती वो बताने लगी। ओह बिलाल, थैंक यू सो मच। एहतशाम ने बेख्तियार ही से अपने साथ लिपटा लिया। तुम्हें नहीं पता ये गुड़िया हमें किस कदर प्यारी है। एहतशाम की आंखें भीग से गईं। ये है ही प्यारी। बिलाल अहमद के दिल ने बहुत पुरजोर तायद की थी। नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। बिलाल अहमद को हर रस्मी जुमला इस वक्त इंतहाई फ़जूल महसूस हुआ था। फिर एहतशाम इसे मम्मा से मिलवाने ले गया। मामा बेहद मशकूर थे और फिर बारी बारी तमाम अफराद खाना से मिलवाते हुए एहतशाम ने ज़रूर बताया था कि इसने ज़ोहरा जमाल को बचाया। और आखिर वो शर्मिंदा हो चला था जब वो चहकती हुई इसके पास चली आई। आपने देखा कितना प्यार करते हैं ये सब हमसे। वैसे इस वक्त वापसी पर हमें तो बहुत डांट पड़ी। बारी बारी सबसे। फिर रशीद ने वापस आकर बताया कि क्या हुआ था। फिर सब ने बारी बारी हमें ढेर सारा प्यार किया और मम्मा तो रो ही पड़ी। आप खाना नहीं खा रहे? इसे यूं ही खड़े देखकर ज़ोहरा को ख्याल आया तो पूछ बैठी, फुर्सत मिले तो खाओ ना। वो हंस दिया। ज़ोहरा शर्मिंदा से होकर वेटर को बुलाने लगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से वो ज़ोहरा जमाल को देखने के लिए बेताब रहने लगा। इसे पता भी ना चलता और वो जमाल विला पहुंच जाता। इधर उधर फिरती नज़र आती रहती।
اور وہ احتشام کے ساتھ خواہ باتوں میں الجھتا رہتا۔ کبھی مما مل جاتی اور وہ اسے زہرہ کے بچپن کے قصے سناتی رہتی اور وہ بظاہر انجان بڑی دلچسپی سے سنتا اور اسے ازور کرتا رہتا۔ مما اپنے طبقے سے تعلق رکھنے والی اکثر خواتین سے ہٹ کر تھیں، ہر ماحول میں ڈھل جانے والی۔ انہیں بیٹیوں کے بارے میں ویسی فکریں لاحق رہا کرتیں جیسے عام ماؤں کو ہوا کرتی تھیں۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ زہرہ سلیقہ شعر ہو، اسے سب کام آنے چاہیے، جبکہ ڈیڈی مختلف مزاج کے تھے۔ سال 2 سال بعد جب فارن سے واپسی ہوتی تو وہ زہرہ کو مزید بگاڑ جاتے، بقول مما آپ ذرا بھی احساس ذمہ داری اس میں پیدا نہیں ہونے دے رہے۔ مما لڑ پڑتی، لڑکی ذات ہے، کل کو شادی ہونا ہے، کیا کرے گی؟ لو، اسے سب فکرے پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے۔ تم دیکھنا نویدہ بیگم اکلوتی بیٹی کو اس شان سے بیاہوں گا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے شاہوں نے بیٹیاں بیاہیں لیکن مقدر کا کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ مما کو ڈیڈی سے سخت اختلاف تھا۔ میں ساتھ میں ملازمائی بھیجوا دوں گا، شہزادی ہے میری بیٹی، تخت پر بیٹھ کر راج کرے گی۔ ڈیڈی اگر مستقل یہیں رہتے تو یقیناً زہرہ جمال شہزادی ہی بن بیٹھتی۔ یہ مما تھی، اسے بیلنس رکھا کرتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس میں غرور جیسی بدعت پیدا نہ ہوئی تھی۔ مما اسے آنے بہانے کچن میں بھی لے جاتی، لیکن اس کی دلچسپی کارٹون فلموں میں زیادہ تھی۔ کبھی مما کی سخت نظریں اسے کچن تک لے بھی جاتی تو اس کے باہر نکلنے تک کچن مکمل دہائی دے رہا ہوتا، ہر چیز بے اما پڑی ہوتی، اور ایسے میں احتشام بھائی اور بھابھی اس کی ڈھال بن جاتے۔ آپ بھی تو اس چھوٹی سی بچی کو کچن میں گھسا دیتی ہیں، ننھے ننھے ہاتھ بھلا کام کرنے کے قابل ہیں؟ بھیا اس کے ہاتھ چوم لیتے اور یوں سب کے اس درجہ پیار نے یہ بات اس کے دل میں پختہ کرتی کہ وہ پیار کیے جانے کے ہی قابل ہے، اور بس۔ نظر انداز کیے جانے کے تصور کو بھی وہ پاس نہ پھٹکنے دیتی۔ اسے توجہ ہی اس قدر مل رہی تھی، تبھی تو بلال احمد کا توجہ دینا اسے عام ہی لگا، کوئی خاص پہلو نظر ہی نہیں آیا تھا۔ یہ تو ایک روز مما نے بتایا کہ بلال احمد نے اسے پرپوز کیا ہے۔ کیوں؟ حیرت زدہ سی مما کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ مما اس کی سادگی پر ہنس پڑی۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہارے اندر کا بچپنا ختم ہو اور تم ذرا بڑی ہو جاؤ، تمہارے رشتے آنے لگے ہیں۔ انہوں نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مما، وہ ان کا ساتھ لپٹ گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ مچھلی۔ وہ پیار سے اسے تھپکنے لگیں، سمجھانے لگیں۔ بلال احمد کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط تھا، وہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، شوقیہ صحافت کی لائن میں آ گیا، ہم پلہ نہ سہی بین تو تھا ہی، اسی لیے بلا کسی رد و قط کے پروپوزل منظور کر لیا گیا تھا، اور ایک شاندار سی تقریب میں دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دی تھی۔ زہرہ کی سوچ کا دھارا اپنے آپ ہی بدل گیا تھا، اس کی آنکھوں میں بلال احمد کے سپنے آ ٹھہرے۔ نرم و کومل جذبات نے اس کے ملیح چہرے کو نیا روپ عطا کر دیا تھا۔ بلال احمد کی محبتوں کی بلا شرکت غیرے وہ حقدار اور مالک بن گئی تھی۔ 2 سال کے عرصے میں وہ سرتاپا بدل گئی تھی، بالکل بلال احمد کی سوچ کے عین مطابق۔ بچپنا رخصت ہو چکا تھا، کچن کے کاموں میں دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ بلال احمد چائنیز کھانے پسند کرتا تھا اور اس نے محض اس کی خاطر چائنیز کوکنگ کی کلاسز جوائن کر لی تھی۔ بلال احمد کو لمبے بال پسند تھے اور اس نے شولڈر کٹ بالوں کو کمر تک بڑھا لیا تھا۔ بلال احمد کو سفید رنگ پسند تھا اور اس کی وارڈروب سفید ملبوسات سے بھر گئی تھی۔ اسے لگتا بلال احمد اس کی رگوں میں اتر گیا ہے، اور یہ کب ہوا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ بس اچانک ہی دھیمے پن سے وہ اس کے اندر اترتا چلا گیا، کسی نشے کی طرح، اور وہ مدہوش ہوتی چلی گئی۔ ان کی شادی بھی شہر کی ایک یادگار تقریب تھی، دونوں طرف سے عمارت کا خوب مظاہرہ ہوا تھا، گولڈن کلر کے عروسی لباس میں وہ دمک رہی تھی۔ تو بلال احمد بھی کچھ کم اسمارٹ نہیں لگ رہا تھا، سب نے ہی اس کپل کی تعریف کی تھی اور سراہا تھا۔ ہم بنے ہی ایک دوجے کے لیے ہیں، بلال احمد نے سرگوشی کی تھی، اور زہرہ جمال کچھ اور سمٹ گئی تھی، پھر جیسے زندگی نے نئے معنی پہن لیے تھے۔ اتنی خوبصورت زندگی سے کبھی نہ لگی تھی۔ بلال احمد کو لگتا جیسے اس کی جان زہرہ جمال میں ہے، اور زہرہ محسوس کرتی بلال احمد کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر دیوانے تھے کہ تمام گھر والوں کے مذاق کا نشانہ بنے رہتے، انہیں پرواہی کب تھی، وہ ایک دوسرے میں مگن تھے۔ دنیا ایک دوسرے پر ہی ختم ہوتی نظر آتی تھی۔ بلال احمد نے لمبی چھٹیاں لے لی تھیں اور ہمہ وقت وہ زہرہ کے ساتھ ہوتا، جی ہی نہ چاہتا کہیں جانے کو۔ یار کیا کر دیا ہے تم نے مجھے، ہاں؟ وہ اسے باہوں میں بھر کر سرگوشی کرتا۔ کر تو آپ نے دیا ہے کچھ، میں تو بالکل کسی کام کی نہیں رہی۔ وہ ہنستی۔
میں: چلو اس ہم سے تو جان چھوٹی، یوں تھا جیسے تمہارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ شریک ہوں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ وہ اس کی نقل اتارنے لگتا اور وہ مصنوعی خفقے کا اظہار کرتی دور جا کھڑی ہوتی اور بلال احمد اسے منانے میں مصروف ہو جاتا۔ آپ نے اتنی لمبی چھٹی لے لی ہے، کہیں وہ آپ کو فارغ نہ کرتے؟ ساحل پر گھومتے ہوئے اچانک زہرا نے کہا تو وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، اکتا گئی ہو مجھ سے؟ محبت سے؟ ایک دم ہی سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ ایسی بات نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ ایسا کیا ممکن ہے؟ اس نے گھبرا کر وضاحت کی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ جاب کا کیا ہے، نکال دیں گے تو میں اپنا اخبار نکال لوں گا، بلکہ بابا جانی تو مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں اس طرح کی نوکری پر لعنت بھیجوں اور آرام سے اپنا اخبار شروع کر دوں۔ لیکن زہرا جانی، مجھے اس طرح مزہ آتا ہے، پابند ہو کر دیکھو نا، تمہارے ساتھ پابند ہو کر میں کتنا خوش ہوں۔ وہ بات کا رخ پھر اس کی جانب موڑ گیا، پھر دونوں ہنس پڑے۔ بلال احمد کی چھٹی ختم ہوئی اور اس نے آفس جانا شروع کیا تو زہرا ایک دم سے تنہا ہو گئی۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود گھر میں کسی سے وہ فرینک نہ ہو سکی تھی۔ بلال احمد نے اسے تنہا چھوڑا ہوتا تو وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھتی۔ اس کی نند تھی، تقریباً اس کی ہم عمر۔ چھوٹا دیور تھا لیکن رسمی الیک سلیک ہی تھی۔ کبھی کبھار یہ ایسا ہوتا کہ رات کا کھانا وہ سب مل کر کھاتے، ہلکی پھلکی بات چیت ہو جاتی اور اس کے بعد پھر وہ ہوتی اور بلال احمد۔ اور اسے اب کمرے میں بند رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس دن وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ بلال احمد تو صبح ہی جا چکا تھا۔ وہ بھی سو ہی رہی تھی، بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا۔ رحیم شاید دوپہر کے کھانے کی تیاری میں تھا۔ سلام بی بی جی۔ اس نے فوراً فرض نبھایا۔ بھوک لگی ہے تو ناشتہ لگا دوں؟ ساتھ ہی پوچھا۔ ہاں رحیم، کچھ ہلکا پھلکا دے دو۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ اسی دم روحی اور عماد لڑتے جھگڑتے اندر آ گئے۔ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکائے اور اس کے ساتھ والی نشستوں پر ہی آ بیٹھے۔ کیسی ہیں بھابھی؟ روحی نے پوچھا۔ اچھی ہوں، مختصراً کہہ کر چائے کپ میں انڈیلنے لگی جو ابھی ابھی رحیم نے رکھی تھی۔ رحیم، ہمیں بھی ناشتہ دو جلدی، پھر ہمیں آرٹ گیلری جانا ہے، آپ چلیں گی؟ روحی نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر یہ سوچ کر گھر میں کیا کرے گی وہ بھی جانے کو تیار ہو گئی۔ میرا نہیں خیال تھا آپ بلال بھائی کے بغیر جانے پر رضامند ہوں گی۔ راستے میں عماد نے کہا تو وہ ہنس دی۔ بعض خیالات غلط ثابت ہو جایا کرتے ہیں، جیسے تمہارا یہ خیال۔ پھر عماد اور روحی کی سنگت میں اس کی بوریت کسی حد تک دور ہو گئی تھی۔ آرٹ گیلری میں بلال احمد سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ کوریج کے لیے آیا ہوا تھا۔ آپ رپورٹر ہیں؟ اس کی وہاں موجودگی نے زہرا کو حیران کیا تھا۔ ہاں، لیکن منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کبھی کبھی میں اس طرح کی کوریج بھی کر لیتا، اگر آپ کو اعتراض ہے۔ آئندہ نہیں کروں گا۔ انتہائی مؤدب ہو کر بولا تو سب ہنس دیے۔ روحی اور عماد اچھے ہیں، واپسی پر یہ اس کی رائے تھی۔ بلال احمد کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں، پھر بھی وہ زہرا کے لیے ٹائم نکال لیتا تھا، اور اب تو یوں بھی وہ اس کا زیادہ خیال رکھنے لگا تھا کہ زہرا اس کو بہت پیارا تحفہ دینے چلی تھی۔ اب ان کی باتوں کا مرکز آنے والا مہمان ہوا کرتا۔ رات بیت جاتی اور وہ پلاننگ کرتے رہتے، اس کا نام کیا رکھیں گے، اس کو کون سے اسکول میں داخل کروائیں گے، اس کو کیا بنانا ہے، غرض کہ ان کی باتیں ختم ہونے میں نہ آتی۔ ان دنوں بڑی نڈھال سی ہو رہی تھی، جسم بھی عجیب بے ڈھنگا سا ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے باہر نکلنا تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ بستر میں پڑی رہتی یا روحی کے ساتھ گپ شپ لگا لیتی، کبھی بھائی بھابھی اور مما آ جاتے تو دل کچھ بہل جاتا۔ بلال احمد کی مصروفیات پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھیں، کبھی تو صبح ہی ہو جاتی واپس آنے میں۔ گاؤں سے بابا جان کا فون کئی بار آ چکا تھا، وہ نوکری چھوڑے اور آرام سے کوئی اور بزنس شروع کرے، بہو ان کے پاس گاؤں میں رہے، لیکن وہ مسلسل انکاری تھا۔ روحی کے ایگزام ختم ہونے پر اسے بھی گاؤں چلے جانا تھا۔ وہ دبے لفظوں میں بلال احمد کو کئی بار کہہ چکی تھی کہ اسے اکیلے پن سے خوف آتا ہے، لیکن اس کے پاس وقت کی کمی تھی۔ اسمبلیاں ٹوٹ جانے کے باعث جہاں پرانے وزراء اپنے بچاؤ کی سب تدبیریں آزمانے کے لیے میڈیا استعمال کر رہے تھے، ہر روز اخبار نت نئے بیانات سے بھرے ہوتے، وہیں اس کی ملاقات مس عروج سے ہوئی۔ وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہ تھی، میک اپ اور جدید ترین لباس اور اوپر سے اس کی ادائیں متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ بہت دنوں سے وہ بابا جان کے پاس آ رہی تھی، شاید کسی کام سے۔ اس نے کوئی توجہ نہ دی تھی۔ ایک شام جب وہ اور مس سروج بابا جان کے کمرے میں اکٹھے داخل ہوئے
بلال احمد، میں نے سوچا اس بار تم انتخاب لڑو۔ میں؟ بابا جان؟ وہ حیران ہوئے بنا رہ نہیں سکا۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ نہیں، حرج تو کوئی نہیں، لیکن آپ… وہ سمجھ نہ پایا بابا جان نے یکا یک یہ فیصلہ کیوں کر لیا۔ میں بھی لڑوں گا، لیکن تم میری مخالف پارٹی کی طرف ہو گے۔ ان کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ اوہ، وہ جیسے ساری بات سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم لیکن بہت کرتے ہو بلال احمد۔ انہوں نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میں سب سنبھال لوں گا، تم عروج کے ساتھ مل کر پلاننگ کر لو، اور کل کے اخبارات میں میرے خلاف کوئی سا بھی بیان دے ڈالو، تاکہ سب کو یقین ہو جائے ہم ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں، اور اپنے انتخاب لڑنے کا اعلان بھی کر لو۔ پارٹی ووگرز تمہیں عروج ڈھونڈ دے گی۔ عروج، آج سے تم بلال احمد کے ہمراہ رہا کرو گی۔ بابا جان نے گویا ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی۔ رات اس نے زہرا کو بتایا کہ وہ الیکشن لڑتا ہے تو حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ؟ مگر کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ بلال احمد نے آئی بروز کھائے۔ بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو میری ضرورت ہے۔ اس وقت ملک جس کرائسس کا شکار ہے، اس سے نکالنے کے لیے ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ اور بابا جان؟ قدرے بیزاری سے بولی تھی۔ ہاں، تو بابا جان بھی اب اپنے اصولوں سے ہٹ چکے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی سیاست صرف سیاست ہی رہ گئی، ملک و قوم کی مفاد کی قطعاً پرواہ نہیں۔ اب ان کی سوچ میں غرض شامل ہو گئی، اور میں زہرا جمال اپنے ملک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ زہرا جمال کو وہ اس وقت بابا جان ہی کی طرح محسوس ہوا، وہ بھی تو اسی طرح بات کیا کرتے تھے۔ اصل میں سیاست ہے ہی ذاتی مفاد کا نام، کم از کم آج کل تو یہی تعریف بن گئی ہے۔ جس کو کچھ نہ آتا ہو، سیاست دان بن کر دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹنے لگتا ہے۔ سربراہ کوئی ہو، وزیر کوئی ہے، ان کے لیے عذاب ایک سا ہے۔ ان میں سے کوئی حب الوطنی کا دعویٰ نہیں کرتا، کوئی چوک میں کھڑے ہو کر مجمع کے آگے ملکی مسائل کو ڈسکس نہیں کرتا۔ کسی کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں کہ رات ہمسایہ نے اگر دعوت اڑائی ہے تو کیسے۔ اسے صرف یہ فکر ہے کہ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھرنا ہے، ان کے تن پر کپڑے کہاں سے لانے ہیں۔ وہ بولتی ہی چلی گئی تھی، اور بلال احمد بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کے چپ ہونے پر قریب آ بیٹھا۔ ویری گڈ، سیاست دان بننے کی صلاحیت تو تم میں بھی ہے۔ چلو میرا ساتھ تو دو گی نا؟ ہاں؟ بلال احمد نے ہاتھ اس کے آگے کیا۔ نہیں بلال احمد، اس نے منہ دوسری سمت کر لیا۔ جس کام کو میں قابل نفرت سمجھتی ہوں، اس کام میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتی ہوں؟ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت مجھے دے دیا کرو۔ میں تنہا رہنے کی عادی نہیں ہوں، ہر وقت توجہ محبت کے ساتھ رہی ہوں میں۔ مجھے خوف آنے لگا ہے اس بیڈ روم سے، اس گھر سے، پلیز۔ اوہ، بلال احمد نے اسے قریب کر لیا۔ آئی ایم سوری جان۔ پھر ڈھیروں وعدے اور خوبصورت باتوں نے اسے بہلا دیا تھا۔ حسب وعدہ بلال احمد اس کے لیے وقت نہ نکال سکا تھا۔ اس کی مصروفیات کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئیں، اور زہرا جمال کی تنہائیاں وحشت بن گئی تھیں۔ بلال کے بھائی بہن تو کب کے گاؤں چلے گئے تھے۔ وسیع اور اس محل میں وہ تنہا تھی۔ بھیا اور بھابھی کبھی چلے آتے تو کچھ دیر کو رونق ہو جاتی، ورنہ وہی خاموشی۔ وہ کرتی بھی تو کیا؟ ٹی وی بھی تو سارا دن نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک ملازمہ ہمہ وقت اس کی خدمت کو موجود تھی، ہر کام کیا کرایا تیار ملتا۔ ڈھونڈنے کے باوجود کوئی مصروفیت نہ تھی۔ اس کا جی چاہتا بلال احمد کے ساتھ باتیں کرے، آنے والے بچے کی، اس کے متعلق پلاننگ کریں، لیکن وہ بیڈ روم میں لگی خوبصورت تصویروں کو بس دیکھ کر ہی رہ جاتی۔ اس کا بیبی کیسا ہوگا؟ اس تصویر جیسا جو بیڈ کے عین سامنے تھی یا جو کارنر ریک پہ تھی؟ پھر وہ ڈرنے لگی، اگر بچہ بدصورت ہوا تو، اگر وہ ایب نارمل ہوا تو۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات ادھم مچانے لگے تھے۔ وہ بلال احمد سے اپنے خیالات، اپنے خوف شیئر کرنا چاہتی، لیکن وہ رات کے اس قدر تھکا ہوا آتا کہ اس میں کچھ بھی سننے کی ہمت نہ ہوتی۔ آتے بستر پر پڑھ کر سو جاتا، اس بات سے قطعاً غافل کہ اس کے ساتھ بستر پر کوئی ہے جو کہ توجہ کی طالب ہے، جس کو تنہائی اندر سے کاٹ رہی ہے۔ وہ محبت کا پودا تھی، اس کی آبیاری نہ ہو رہی تھی، اور وہ سوکھنے لگی تھی، اندر ہی اندر مرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے گہرے ہلکے اس کی بے خوابی کے غماز تھے۔ اس کا کمزور پڑتا وجود خود سے غفلت کی نشاندہی کرتا تھا۔ بھابھی کئی بار اسے ٹوک چکی تھی، مما کئی بار اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا چکی تھیں، اور سب کا ایک ہی مشورہ تھا، اسے اپنی صحت اور خوراک پر توجہ دینی چاہیے۔
बसूलते दीगर बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इसने कब अपना ख्याल खुद रखा था? मम्मा, डैडी, भाई, भाभी सभी तो थे इसका ख्याल रखने वाले। फिर बिलाल अहमद भी तो ऐसा ही था, बेहद केयरिंग, बेहद चाहने वाला। इसका डर कि इससे मम्मा, डैड, भैया, भाभी के प्यार और तवज्जो की कमी महसूस ही ना होती थी। और अब वही इससे लापरवाह हो गया था, इससे मोहब्बत ना दे रहा था, फिर वो कैसे ठीक हो सकती थी? उस रोज़ भैया अखबार लेकर चले आए। कहाँ है बिलाल अहमद? कमज़ोर और निढाल होती ज़ोहरा उनके बहुत से सवालों का जवाब बनी हुई थी। वो इससे कुछ जवाब ही ना बन पड़ा। दर हकीकत वो बेखबर थी कि गुज़श्ता 2 रोज़ से बिलाल अहमद का कोई पता न था। वो ट्रैंकुलाइज़र लेकर सो गई थी। ये उन्होंने अखबार इसके सामने किया, जाने क्या सोचकर पीछे हटा लिया। क्या हुआ भाई, खैर तो है? तशवीश से उन्हें देखने लगी। हाँ, बिलाल अहमद का कोई कांटेक्ट नंबर है तुम्हारे पास? मुझे ज़रूरी काम है। साफ लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। गांव में होंगे, बाबा जान के पास मसरूफ़ होंगे। उंगलियां चटकाते हुए बोली, ज़ोहरा तुम मेरे साथ घर चलो। उन्होंने एकदम ही फैसला सुना दिया और वो बिला चूं चरां उठकर चलती। भैया ने मुलाजमा को हदायत दी और इसे लेकर घर चले आए। मम्मा और भाभी इसे प्यार से मिली और इतने दिनों बाद जाने क्यों इसे लगा जैसे वह महफूज पनाहगाह में चली आई हो। उसकी आंखें पानियों से भर गईं। मम्मा की शफीक आगोश ने जैसे इसके खुश्क सौतों में पानी डाल दिया था। हमें उससे ये उम्मीद न थी ज़ोहरा। भाभी का अंदाज़ तसल्ली देने वाला था और तब भी वो चौंकी थी। क्या हुआ है मम्मा? और भैया ने इसे बाहों में समेटते हुए गोया इसे जाँ कब्ज़ होने का मसला सुनाया। बिलाल अहमद ने अरूज से शादी कर ली थी। अखबार में बहुत नुमाया खबर छपी थी। बेशक वो इलेक्शन हार गया था, लेकिन जश्न फिर भी मनाया गया था और वो बेखबरी में ही मारी गई थी। कितने दिन वो होश और ख़ैल से बेगाना रही थी और जब होश में आई तो भी हालत पागलों की सी थी। बैठे बैठे रोना शुरू कर देती, फिर हंसने लगती। वो सारे तो जैसे मर मर के जी रहे थे। मम्मा ने बिलाल अहमद से रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हनीमून मनाने जा चुका था। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ गुड़िया। भैया इसके हाथ थाम कर रो पड़े। मैं ही इतने सालों में इसे ना पहचान सका। अपनी कांच सी गुड़िया इसके हाथों में दे डाली। क्या खबर थी वो यूँ तोड़ डालेगा मान भी, दोस्ती भी। सभी रिश्ते इसकी नज़र में हीच हो गए थे, यूँ तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। फिर एक दिन वो लौट आया, शर्मिंदा सा, नादिम सा। मुझे माफ़ कर दे मम्मा। वो उनके पैरों में गिर गया। मम्मा आंसू भरी आंखों से बस इसे देखती रहीं। तुमने मार डाला इसे बिलाल अहमद, तोड़ दी वो नाजुक सी गुड़िया। अरे पागल, वो तो मोहब्बत से गुंधी लड़की थी। तुमने इसे अजियतें दे दे कर मार डाला। कोई यूँ भी करता है? तुम्हें तो इश्क था ना उससे। मम्मा खुद कब हवासों में थी। मजबूरी थी मम्मा, मजबूरी, वरना मैं ज़ोहरा को धोखा दे सकता हूँ? वो बिलख रहा था। भैया घर पर न थे, वरना वो तो शायद खड़े खड़े से घर से निकाल बाहर करते। भाभी ने अलबत्ता खूब खरी खरी सुनाई थी, जिसे इसने चुपचाप सुना था। फिर ज़ोहरा से मिलने की ख्वाहिश पर मम्मा भड़क ही तो उठी। हरगिज़ नहीं बिलाल अहमद, तुम अब इससे कभी मिल सकोगे, ये ख्याल भी जहन से निकाल दो। नहीं मम्मा, ऐसे ना कहें। ज़ोहरा की आवाज़ आई और बिलाल अहमद ने पलट कर देखा। सीढ़ियों में खड़ी थी वो। ज़ोहरा जमाल तो ना थी, उसका ढांचा था शायद। ज़ोहरा? वो इसकी सिमत बढ़ा। बैठो बिलाल अहमद, बैठो। वहीं सीढ़ियों में बैठकर इससे कहने लगी, मैं शर्मिंदा हूँ ज़ोहरा। वो सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा था। ज़ोहरा ज़ोर से हंस पड़ी। हाँ, मुझे पता है तुम मजबूर हो गए होंगे, है ना? या फिर तुम्हारी बीवी में ऐसी कोई बात ना थी जो तुम्हें असीर बना कर रखती? असल में बिलाल अहमद, हम ऐसे ही गलतियाँ करते हैं, फिर शर्मिंदा होते हैं, फिर गलतियाँ करते हैं, फिर शर्मिंदा होते हैं। लेकिन बाज़ गलतियों के लिए शर्मिंदा होना नाकाफ़ी होता है, इसलिए कि उनकी तलाफ़ी नहीं होती। देखो ना, मुझे तुमसे दूसरी औरत की महक आ रही है, बल्कि उसी दिन आनी शुरू हो गई थी जब तुमने इससे शादी की। और तब से अब तक मैं इस महक को मारने की कोशिश में रही। मैंने तुम्हें तसव्वुर में भी अपने करीब आने नहीं दिया। मैंने कभी किसी की चीज़ इस्तेमाल नहीं की। उतरन तो दूर की बात, अपने हाथ सूंघो बिलाल अहमद, इनमें किसी और की महक है। अपना पूरा वजूद गौर से देखो बिलाल अहमद। क्या तुम्हें अरूज नज़र नहीं आती? मुझे आती है, महसूस होती है। और बिलाल, मैंने भी इस बो को मारने का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। ये देखो। इसने मुट्ठी खोली, इसमें एक पुड़िया रखी हुई थी। ज़ोहरा? मम्मा और भाभी परेशान होकर इसकी तरफ बढ़ी थी। यह स्लो पॉइज़न है, बहुत आहिस्तगी से आपको तमाम दुखों से बेनियाज कर देता है, और तुम्हें खुद से दूर रखने में इसने मेरी बड़ी मदद की है।
اب مجھے وہ مہک جب بھی آنے لگتی ہے میں اسے کھا لیتی ہوں اور پھر کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی کچھ بھی۔ وہ چیخنے لگی۔ بھابھی اور مما اسے سمجھانے لگی، جیسے تیسے قابو کر کے اسے اوپر لے گئیں۔ بلال احمد کچھ دیر افسردہ نادم سے وہیں کھڑا رہا اور پھر لوٹ آیا۔ یہ افسردگی پچھتاوا تو عمر بھر کے لیے اس کے ہمراہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ زہرہ مر گئی۔ وہ منشیات کی عادی کس طرح ہوئی یا اسے کس نے اس نشے پر لگایا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس کے ڈیڈی اسے اپنے ساتھ باہر لے گئے تھے، جس پر اس نے ایک ڈسیبل بچے کو جنم دیا اور مر گئی۔ میں نے بچے کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ وہیں کسی ادارے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں سارا قصور میرا ہے، لیکن میں نے اس کی تلافی کی کوشش کی تھی۔ میں بار بار معافی مانگنے کیا؟ زہرہ تو دوسری عورت کے کرم میں مبتلا ہو گئی تھی، اسے ہر جگہ وہی نظر آنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی۔ دیکھو ماما، اس شخص نے مجھے بے اما کر دیا، مجھ سے محبت چھین لی۔ ماما، آپ تو کہتی تھی کہ میں ہوں ہی اس قابل کہ سبھی مجھ سے پیار کریں، تو پھر ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے پیار کرتے کرتے کسی اور کی طرف چلا گیا؟ اس کی چیخیں، اس کی آوازیں میری سماعتوں میں محفوظ ہیں۔ میں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، تمہاری ماں کی خاطر میں نے اسے اذیت دی، اس عورت کی خاطر جو وفا کے نام سے ناشنا تھی۔ تمہیں برا تو لگے گا بیٹی، لیکن یہ سچ ہے۔ تمہاری ماں نے مجھ سے سب کروایا، پھر خود بھی چھوڑ گئی۔ میں ہیرے اور پتھر میں فرق ہی نہ کر سکا۔ بلال احمد خاموش ہوئے تو کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ نیرا بلال یک ٹک چھت کو گھور رہی تھی، تو اس سارے میں وہ بھی حصے دار تھی۔ آخر وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس نے زہرہ جمال کا شوہر چھینا تھا۔ بابا، وہ کیا مجبوری تھی؟ بالآخر سوال زبان پر آ ہی گیا، اور بلال احمد کی جھکی نظریں اور جھک گئیں۔ مجھے ٹریپ کیا گیا تھا۔ میں اور عروج ساتھ ساتھ تھے، رات گئے تک الیکشن کمپین کے سلسلے میں محفلیں جمع کرتی۔ ایسے میں کبھی کبھار پینے پلانے کا چکر بھی چل ہی جاتا۔ مجھے ابھی تک یقین ہے کہ میں نے اس قدر نہیں چڑھائی تھی کہ شرم و حیا کا دامن چھوڑ دیتا۔ لیکن صبح ہوتی عروج نے اپنے لوٹ جانے پر اس قدر واویلا کیا کہ میں نے فوری اس سے شادی کر لی۔ مسئلہ عزت کا تھا۔ بابا جان کے پاس بھی اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ اس شادی کو ڈکلیئر کر دیتے۔ بصورت دیگر عروج اخبارات تک جانے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ مجھے اس قدر الجھا دیا گیا تھا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ زہرہ بھی میرے دل و دماغ سے محو ہو گئی تھی۔ شادی ڈکلیئر ہونے کے اگلے روز ہی عروج نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے شادی محض مجھے شکست دلانے کے لیے کی تھی۔ میرا جیت جانا لازمی امر تھا، اور ناصر الدین کو یہ گوارا نہ تھا، سو اس نے مجھے عروج کے جال میں پھنسایا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تمام حلقے میں واقعہ مشہور کر دیا گیا کہ میری اور عروج کی شادی کا پس منظر لیک آؤٹ کیسے ہوا، کیسے تمام لوگ مجھ سے بدظن ہوئے اور میں ایک جیتی ہوئی بازی ہار گیا۔ سمجھ ہی نہ سکا کہ ناصر الدین جیت گیا۔ چند ماہ بعد عروج نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اب ہی بدل جاتی، لیکن وہ جانے کس مٹی سے بنی تھی۔ بالآخر اس شرط پر کہ وہ بچے کو ساتھ لے کر نہیں جائے گی، میں اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو کیا۔ پھر جس دن تم پیدا ہوئیں میں نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی دنیا سے نکال دیا۔ لیکن نیرا، میں نے تم سے بے تحاشا محبت کی ہے، تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ تمہاری ماں کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑا۔ میں نے بہت ناز و نعم اور احتیاط سے تمہیں پالا ہے۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ تمہاری ماں زہرہ جمال تھی، اور سب سمجھتے بھی یہی ہیں۔ تم بھی دل میں یہ خیال مت لانا کہ تم ایک بد کردار عورت کی بیٹی ہو۔ زہرہ جمال بہت با کردار تھی، اور وہی تمہاری ماں۔ کاش میں سچ مچ زہرہ جمال کی بیٹی ہوتی بابا جانے۔ کاش میں تو اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہوں، بہت بری طرح سے۔ وہ ان کے گلے لگ کر سسک اٹھی تھی۔ ارمغان کی وہی روٹین تھی، صبح کے گئے شام کو لوٹتے اور آتے لائبریری میں بند ہو جاتے۔ وہ چائے کھانے پر انتظار کرتی رہتی، لیکن ارمغان کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو اس تکلیف کی کیا ہوتی؟ وہ بھی چپ تھی۔ وہ ارمغان کی بے نیازیوں کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی، وہ اپنے صبر کی، لیکن اسے انتہا ختم ہوتی نظر نہ آتی تھی، بلکہ اب تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ارمغان اسے کسی بھی دن گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیں گے۔ وہ ذہنی طور پر منتظر تھی ایسے کسی بھی حکم کی۔ کتنے ڈھیر سارے پچھتاوے تھے اس کے ہمراہ۔ وہ چاہتی بھی تو چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ عروج کی بیٹی ہونے کا پچھتاوا، بلال احمد کے کردہ گناہ کا پچھتاوا، زہرہ جمال کے تباہ ہو جانے کا پچھتاوا۔ کس کس پچھتاوے کا مداوع کرتی، کس کس پچھتاوے سے چھٹکارا حاصل کرتی۔
फिर जी में आता अरमगान हिजाज़ी से पूछे, इन सारे पछतावों में से इसका किरदार क्या था? वो जो खला में लटका दी गई थी, इसका जुर्माना क्या कोई और नीरा बिलाल अदा करेगी? क्या ये सिलसिला चलता ही रहेगा? लेकिन अरमगान इसकी सुनते भी। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, इससे इन्हें कोई दिलचस्पी न थी। सारा सारा दिन थका देने वाली तन्हाई होती, और वो कहीं जाने को भी दिल न करता कि अपनी उदासी को छुपा ना पाती और पछतावे ज़ुबान ज़द आम हो जाएं, तो फिर तमस्खुर भरी नज़रें बन जाते हैं। और इसी खौफ ने इसे घर तक ही महदूद कर दिया था। सज़ा कैसी ही हो, खुद साख्ता हो या सज़ावार ठहराया गया हो, सज़ा ही होती है। पहली सूरत बेहिस कर देती है, दूसरी सूरत हसास, बेबसी और मज़लूमियत का एहसास। इसके साथ सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। वो ना बेहिस हुई थी और ना ही बेबसी का एहसास होता था। फिर भी इसे लगता जैसे इसके अंदर से कुछ ख़त्म होता जा रहा है। वो पहले सी नहीं रही। अरमगान की क्या कैफियत थी ये वो जान ना पाई थी। इस रोज़ बड़े दिनों बाद नाश्ते पर आकर बैठे थे। बेख्वाब सी आंखें, परेशान चेहरा, तो गया वो खुद भी अजाब में थे। इसने झुकी नज़रों से जायज़ा ले लिया था। चाय उनके आगे रखते बेइरादा उसे मुँह से निकल गया, पापा को ये क्यों कहा गया था कि ज़ोहरा जमाल मर गई हैं? अरमगान ने बेहद हैरत से उसे देखा था। किसने कहा? काफ़ी देर बाद उन्होंने पूछा। कहानी किसी एक फ़र्द के सुना देने से तो मुकम्मल नहीं हो जाती अरमगान हिजाज़ी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और अरमगान ने देखा वो मुस्कुराहट कितनी फीकी और बेजान थी। कहानी का हर किरदार एक अलग कहानी लिए होता है। हर किरदार किसी एक बात को मुख्तलिफ पहलुओं से देखता है। आप आधी कहानी किसी एक किरदार के हवाले से सुनकर इसे मुकम्मल करार दे तो सकते हैं, लेकिन बाकी किरदारों के साथ, बाकी कहानी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। जो कहानी आपने मुझे सुनाई वो एक किरदार से सुनी गई, बल्कि उसी कहानी का एक और अहम किरदार भी था। वो भी यही कुछ कहता है, लेकिन आप जहां अपने तय कहानी का इख्तिताम करते हैं, वहीं से इस दूसरे किरदार की कहानी शुरू होती है। माफ़ी हमेशा ज़िंदा लोगों से मांगी जाती है, मुर्दों को सिर्फ रोया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। और अरमगान हिजाज़ी इस कहानी का दूसरा किरदार यही कर रहा है। एक तरफ़ा फ़ैसले कभी सूदमंद नहीं रहते। लेकिन अरमगान, किसी बेगुनाह को सज़ावार ठहराना भी तो इंसाफ नहीं, मोहब्बत का तकाजा नहीं। और फिर जिस मोहब्बत की महरूमी ने ज़ोहरा जमाल को तबाह किया, आप उसी को दोहरा कर क्या एक और ज़ोहरा जमाल नहीं मार रहे? ये इंसाफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाई सिसक उठी और फिर इसी तरह वहाँ से भाग गई। अरमगान खाली खाली नज़रों से इसे जाता देखते रहे। फिर कप रख कर वो भी उठ गए। जहन बुरी तरह उलझ चुका था। मैंने अरमगान हिजाज़ी का इंतखाब सोच समझ कर किया था। मुझे खबर ना थी कि वो ये शादी किसी मकसद के तहत कर रहा है। जिस तरह इसने जाली घर वाले बनाए, हमारी तरफ उन्हें भेजा, मुझे कहीं भी शुबा ना हो सका। लेकिन वो ज़ोहरा जमाल का भतीजा है। बस बेटा, जब हम मुतमईन हो जाते हैं कि हमारे ज़िम्मे किसी गुनाह का कफ़ारा वाजिबुल अदा नहीं, तो तभी कहीं से कोई भूला भटका गुनाह चला आता है। और गुनाह तो गुनाह होता है। हम भूल गए तो क्या हुआ, रब ताला को तो याद रहता है और वो कभी बेइंसाफ़ी नहीं करता। अगर ज़ोहरा जमाल के ज़िंदा होने का मुझे पता होता तो मैं किसी भी तरह इसे ले आता, इसके पैरों में जा बैठता, कुछ भी कर लेता। लेकिन मुझे तो सिर्फ इसके मरने की इत्तला भिजवाई गई और मेरे लिए दरे माफ़ी बंद कर दिया गया। बोलो, मैं क्या कर सकता था? उन्होंने कर्ब से आंखें मूंद लीं। बिलाल अहमद का लहजा चटक रहा था। पापा जानी, ज़ोहरा जमाल ज़िंदा हैं, अब तो आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। वो जैसे पुरुम्मीद हुई थी। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। उनका अंदाज़ ख़ुद कलामी का सा हो गया था। वो क्या बताते, गुज़श्ता कई रोज़ से वो एहतशाम से रब्ता करने की कोशिश में थे, जबकि वो इन्हें किसी सूरत पहचानने को तैयार न थे। पापा, कोशिश में अब मज़ीद देर ना कीजिएगा प्लीज़। इसके लहजे में उम्मीद, बेचैनी, बहुत कुछ था। उन्होंने इसके सर पे हाथ रखकर गोया ख़ुद को तसल्ली दी थी। अल्लामा इकबाल ने जो ये कहा था, वो एक सजदा जिसे तो गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो ठीक कहा था। जब मैं बिलाल अहमद की बेइल्तफ़ाती का शिकार हुई तो मैं समझी कि दुनिया ख़त्म हो गई। ज़िंदगी बिलाल अहमद की मोहब्बत थी और कुछ नहीं। मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े हों। मैं मोहब्बतों की आदी थी। मॉम, डैड, भैया, भाभी, सब अज़ीज़ रिश्तेदार, सभी तो मुझसे मोहब्बत करते थे। सभी तो कहा करते कि मैं मोहब्बतों के लिए ही बनी हूँ।
सभी मुझसे मोहब्बत करेंगे, बल्कि करनी चाहिए, लेकिन बिलाल अहमद की मोहब्बत इन सब मोहब्बतों से बढ़कर थी। ये बिलाल अहमद की मोहब्बत ही तो थी जिसने मुझे मोहब्बत देना सिखाया। मैं हमेशा लेती आई थी, अब मोहब्बत करना सीखी, दुनिया एकदम ही बदल गई थी। बिलाल अहमद ने मुझे एक नई ज़ोहरा बना दिया था, बिल्कुल एक नई। और ये नई ज़ोहरा सिर्फ एक मोहब्बत का बदल जाना ही बर्दाश्त ना कर पाई और फ़रार की राहों पर जा निकली। मुझे याद है जब जीरा काम करने वाली ने पहली दफ़ा मुझे पुड़िया दी तो मैं बड़ी देर तक इससे लड़ती रही। फिर इसने मुझे बताया कि इस सारे दुखों का इलाज है, सारी तन्हाइयाँ ख़त्म कर देगी। और ऐसे ही हुआ। मैं रफ्ता रफ्ता सब भूलती गई। बिलाल अहमद के दिए दुख, तन्हाई का गम मेरे अंदर तक फैला था, और इसको मारने के लिए मेरे पास और कोई राह ना थी। सो मैं बेखुद हो गई, भूल गई कि मेरे साथ एक और जान भी वाबस्ता है। बिलाल अहमद जब मेरे पास माफ़ी मांगने आया तब मैं इस स्टेज पर थी कि मेरे लिए हर शय बेमायनी हो गई थी। लेकिन बिलाल अहमद से मुझे अरूज की महक तब भी आ रही थी, और वो महक मुझे झंझोड़ रही थी। तभी बिलाल अहमद को मैंने वापस लौटा दिया। मेरे लिए बिलाल अहमद को बर्दाश्त करना मुमकिन ही नहीं था। डैडी सारी सूरत हाल से बेखबर थे। वो पाकिस्तान आए तो मुझे इस हालत में देखकर तड़प गए। फिर वो मुझे अपने साथ ही ले गए। मेरी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। नशा व अद्वियात ने मुझे अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर डाला था। डॉक्टरों ने अपनी तमाम तर सलाहियत बरोए कार लाकर बच्चा बचा तो लिया, लेकिन वो एब नॉर्मल था, बहुत अजीब सा। मुझे बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी, दुख अब भी हौसले से बढ़कर था। लेकिन पता नहीं मुझ में कहाँ से इतना हौसला आ गया था कि मैं बर्दाश्त कर गई। मेरा इलाज जारी था कि एक दिन एक बुज़ुर्ग ख़ातून हॉस्पिटल आईं। हुलिये से वो पाकिस्तानी लगती थीं। 2-4 दिन बाद जब उनसे अलैक्स लायक हुई तो वो बाकायदगी से मेरे पास आने लगीं। उनका बेटा एडमिट था। एक दिन मुझसे पूछ बैठी मैं कैसी इस लत का शिकार हुई, और मैंने सब कह सुनाया। उन्होंने बहुत हमदर्दी से सब सुना था। हमदर्दी से मेरा हाथ हाथों में लेकर कहने लगीं, बेटी हम बहुत बदनसीब लोग हैं। हम मुसलमान हैं ज़रूर, लेकिन नाम के। हमारे पास तो नमाज़ पढ़ने तक का टाइम नहीं। हमारे माँ बाप हमें ये तो बताते हैं कि सर दर्द में कौन सी दवा लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो ये नहीं बताते जब दर्द ला दवा हो तो रब के आगे झुक जाना चाहिए। एक सजदे में निजात है बेटा। खातून की आंखें भीग गई थी। मैं सोच में पड़ गई थी। वाकई हमें आसाइशों में तोल देने वाले मम्मा और पापा ने कभी ये रास्ता तो दिखाया ही नहीं। हमें मोहब्बत दी, ये नहीं बताया कि एक मोहब्बत ऊपर वाले की भी है। हम खुद गर्ज हैं, सिर्फ तब उसे याद करते हैं जब तमाम दुनियावी सहारे साथ छोड़ देते हैं। लेकिन वो तो रब्बुल आलमीन है, कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम ही नहीं पुकारते, हम ही दूसरे रास्ते पर जा निकलते हैं, तबाही बर्बादी के रास्ते पर। खातून इसके बाद नहीं आई, लेकिन मुझे रोशनी की किरण दे गई। और हॉस्पिटल से जो ज़ोहरा जमाल लौटी, इसके मन में बिलाल अहमद की चाहत ज़रा भी बाकी न रही थी। वो एक सजदा ही था जिसने मेरे दिल से तमाम दुख दर्द धो दिए। पुरानी ज़ोहरा जमाल मर गई, एक नई ज़ोहरा जमाल ने जन्म लिया, तो ज़िंदगी बहुत सहल हो गई। बिलाल अहमद को पैगाम भिजवा दिया गया कि ज़ोहरा मर गई। यूँ मैंने अपने लिए सारे रास्ते बंद कर डाले। डैडी ने मेरे कहने पर यह हवेली दोबारा तामीर करवाई, और सबके मना करने के बावजूद मैं यहाँ चली आई। यहाँ तन्हाई और सुकून था, वो सुकून जिसके लिए मैं बहुत दिनों तड़पी थी। जिस तन्हाई ने मुझे मरने पर मजबूर किया, वही तन्हाई अब मेरी दोस्त है। अरमगान माँ बाप बहुत बड़ी गलती करते हैं जब वो औलाद को हद से ज़्यादा मोहब्बत देते हैं। इसे नफ़रत, बेगानगी का कुछ एहसास ही नहीं होने देते। तभी तो जब कभी ज़िंदगी उनकी तवक्कुआत के बरक्स होने लगती है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। मोहब्बत कोई भी हो, अगर इसमें तवाज़ुन ना रहे तो सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ज़ोहरा जमाल खामोश हुई तो कमरे में बला का सकूत छा गया। अरमगान हिजाज़ी को वहशत होने लगी। मोहब्बत रोशनी है मध्यम मीठी, इसे ना तो तेज़ करो कि सब चुंधिया जाए, और ना ही मध्यम कि बाकी कुछ ना रहे। समझ रहे हो ना मेरी बात? उन्होंने गहरी नज़रों से अरमगान को देखा तो जो सर झुकाकर जाने क्या सोचने लगे थे। फ़ोन की घंटी बहुत देर से बज रही थी। नीरा सुस्ती का मुजाहिरा आला दर्जे का कर रही थी। जब उधर से भी ढीठपन का शानदार मुजाहिरा हुआ तो मजबूरन इसे उठना ही पड़ा। हेलो। बेजारी इसके लहजे से इस कदर आया थी कि दूसरी तरफ मौजूद इरमा ने फ़ौरन महसूस कर लिया। क्या बात है, क्या बुरा लगा है फ़ोन करना? कौन? वो पहचान ना सकी। अच्छा, तो क्या अरमगान हिजाज़ी की मोहब्बत इस कदर हावी हो गई कि हम भूल ही गए तुम्हें? इरमा बोल रही थी। अरे इरमा तुम? खुशी और हैरानी से चीख ही तो पड़ी।
शुक्र है ये नहीं कह दिया कि कौन इरमा, अब भी खफा ही थी। कम ऑन यार, कैसी हो, कहाँ रही? मैंने तो कई बार कांटेक्ट किया, पता चला अमेरिका गई हो। अब अपिया के पास। फिर बस भोली बिसरी यादें उमड़ी आई थीं। हाँ यार, बस यही चक्कर हो गया। अपिया ने बुलाया तो सैर के लिए था, लेकिन हुआ यूँ कि वहीं पर रज़ा अहमद को मेरे सर मोड़ दिया। मजबूरन मुझे शादी करना पड़ी। अभी पिछले हफ्ते ही वापस हुई है। पिछले हफ्ते ही वापसी हुई है। तुम्हारे ससुराल का नंबर शायद ख़राब है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, मिला ही नहीं। फिर सोचा इधर ट्राई करूं। शुक्र कि तुम मिल गई। बाय द वे, प्रोग्राम क्या है? कहीं अरमगान के साथ डिनर विनर बाहर तो नहीं करने जाना? अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है भी तो फ़ौरन कैंसिल करो और दोनों मेरी तरफ पहुंचो। जोनी और तैयब हमदानी भी पहुंच रहे हैं। ओके, बाकी बातें शाम को। जल्दी आना। खुदा हाफिज़। हमेशा की तरह इरमा ने ऑर्डर जारी करके फ़ोन बंद कर दिया और वह रिसीवर को देखती रह गई। एक नई टेंशन खड़ी हो गई थी। अब वह अरमगान को कहाँ से लेकर जाती? पिछले 2 हफ्तों से वो घर से गायब थे। इसने 1 हफ्ता तो इंतज़ार किया, फिर डैडी की तरफ चली आई। सज़ा ही काटनी थी, जगह से क्या फ़र्क पड़ता था। और अब इरमा के कहने के मुताबिक जो वहाँ फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो अभी तक घर वापस नहीं आए और उनके बगैर डिनर में जाना। क्या इसके चेहरा पर सब कुछ वाज़े नहीं लिखा? आईने के सामने जा खड़ी हुई। क्या ये चेहरा सबको नहीं बताएगा कि इसके साथ क्या हुई थी? अरमगान हिजाज़ी की मोहब्बत एक धोखा थी, वो इंतकाम का निशाना बनी थी। उफ़, वो पीछे हट आई। मोहब्बत से महरूम हो जाने से कहीं ज़्यादा अज़ियतनाक इस महरूमियत का इश्तहार बन जाना होता है, और यही नहीं चाहती थी कोई इस इश्तहार को पढ़कर इसका हमदर्दी की आड़ में तमस्खुर उड़ाए। वो कोई भी बहाना कर देगी, कुछ भी कह देगी। अगर इतना अरसा नहीं मिले तो कौन सा क़यामत आ गई। दोबारा बिस्तर में घुस गई। पता नहीं ये इश्तहार कब तक लोगों की नज़रों से ओझल रह सकता था, रह भी सकता था, या कोई और हेडलाइन ऐसे मज़ीद नुमाया कर छोड़ती। जो भी होता, वो क्या कर सकती थी। इसने फिर सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया था। शाम में इसने इरमा से फ़ोन पे बहाना कर दिया। वो खफा होती रही, इसरार करती रही, और इसने फिर कभी का वादा कर लिया। शायद वो फिर कभी भी आने वाली नहीं थी, मगर ये बात जब तक छुप सकती थी, इरादा था कि छुपी रहे, कबूतर की तरह। कैंडल जलाकर इसने एक नज़र कैलेंडर पर डाली। हाईलाइट की जाने वाली 11 मई बहुत मध्यम सी दिखाई दे रही थी। पिछली 11 मई किस कदर रोशन थी। इतनी रोशनियाँ ऐसी जली थी कि हर और उजाला सा हो गया था, ऐसे कि वो पोर पोर भीग गई थी। और आज की 11 मई, वक्त कैसे बदल जाता है। हम समझते हैं ये शायद यूं ही हम पर रोशनियाँ लुटाता रहेगा, लेकिन यूं अचानक वार करता है कि बंदा बेबस सा देखता रह जाता है। और अरमगान हिजाज़ी सही कहते हैं डैडी, बाज़ गुनाहों की माफ़ी तो होती है, अजाला नहीं होता। डैडी कभी अजाला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़ोहरा जमाल को अब उनकी ज़रूरत नहीं। वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी से खुश और मुतमईन हैं। डैडी भी मुतमईन नज़र आते हैं, मगर मैं, शायद सबके हिस्से की बेइत्मीनानी मेरे हिस्से में रकम कर दी गई है। सारे अजाले मुझे ही करने हैं, मुझे ही। इसकी आंखें पानियों से भर गईं। कोई आंसू पलकों की बाढ़ तोड़े रुखसार पर फिसल आया। कोई नहायत करीब से बोला था, रोशनी तो पहले ही कम है, क्या मज़ीद अंधेरा करोगी? लहजे में शरारत थी। नीरा ने आंखें खोली। एक धुंधला सा अक्स इसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, अब के कान में सरगोशी हुई थी। कभी कभी अलविज़न कितने पावरफुल होते हैं। अरमगान हिजाज़ी देखो, तुम नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है। क्या होते हो तुम मर्द भी, मोहब्बत देते हो, छीन लेते हो। वो धीरे से बड़बड़ाई थी। नीरा, इसके हाथ मजबूत गिरफ्त में आए थे। गर्म मानो सा एहसास। इसने आंखें नहीं खोली, मुबादा इसका तसव्वुर ही टूट जाए। आंखें खोलो नीरा। मत लुटाती आवाज़। मैं माफ़ी मांगने नहीं आया नीरा, इसलिए कि जो कुछ मैंने किया इसकी माफ़ी यूँ मिलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन नीरा, मोहब्बत का फिगर अब भी वही है। अजाले की सूरत ना सही, इसी मोहब्बत के सदक़े मुझे रोशनी लौटा दो। मेरे इर्द गिर्द बहुत अंधेरा बढ़ गया। ज़ोहरा जमाल और बिलाल अहमद अपनी सज़ा खुद भुगतें, या उन्हें भी माफ़ी मिल जाए, मगर हमें उनकी खातिर मज़ीद दुख नहीं उठाने चाहिए। हमें उम्र नज़ालों में नहीं काटनी। बोलो, मेरे साथ चलोगी? बोलो। क्या कुछ नहीं था इस लहजे में, मोहब्बत, शर्मिंदगी, मान, और वो भूल गई सब कुछ। वाकई मोहब्बत की फ़िक्र अब भी ज़्यादा ही थी।
کیا ہوا جو بیچ میں ازالے کی رت چلی آئی؟ اگرچہ تکلیف دہ تھی، لیکن اب اگر وہ جا رہی تھی تو کیا ضرورت تھی اسے پکڑ کر بیٹھنے کی؟ اس نے پلکیں اٹھائیں، اٹکا ہوا آنسو نیچے آ گرا، کینڈل کی لو پر شعلہ لرزا۔ نہیں نیرا، نہیں، یہ اجالا تو میں لینے آیا ہوں اور تم اسے بجھا رہی ہو۔ نہیں پلیز۔ اس کے لہجے میں تمام گناہوں کی ندامت تھی اور اس کے پاس معافی کا اجالا۔ ہاں، ہم تمام عمر ازالوں میں نہیں کاٹیں گے۔ اس کے بندھے ہاتھوں پر چہرہ ٹکا کر گویا اس نے تمام زیادتیاں بخش ڈالی تھیں۔ کیلنڈر پر مئی جگمگا اٹھی تھی۔ ہم ڈنر باہر کریں گے؟ ارمغان نے دھیرے سے کہا اور وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر تیار ہونے چلتی۔ دور تک اجالا تھا، ڈھیر سا اجالا۔ اللہ حافظ۔